Okay. Assalamu alaikum, everyone. On behalf of AMP, I would like to welcome our distinguished speaker of the day, Brother Muhammad Ashraf, and all the attendees, those who are joining this webinar across the globe. Let just for the comfort of everyone, we'll have this webinar in mixed language. इंग्लिश हिंदी उर्दू का मिक्स में करेंगे ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले पाएं और साथ ही इतने ज्वाइन कर रहे हैं. लेट मी जस्ट टेक यू टू द जर्नी ऑफ AMP ऑफ द लास्ट 13 ईयर. is a registered in India, US, UK and Australia, alhamdulillah, as a non-profit organization. We are here for the last 13 years. It was started by some like-minded people, 3-4 people, those who have started it. और अब 13 साल में माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है. और our focus is on education, empowerment and employment. AMP has a vision to positively impact life of 10 million people by 2030. AMP mission is to empower the underprivileged and the greater benefit of the society in general and nation as a whole. Coming to the vision, AMP is going to be, it wanted to be the community in which advancement of education, social progressiveness, culture vibrancy, political, influential and economically dynamic society can be made. Coming to the achievement of AMP, alhamdulillah, 13 years has been quite a journey. SDP School Development Program is one of our flagship program, wherein our team visit a school, especially our clustered school, and we try to kind of bridge the gap which is there between student and the community, student and the school. जो disconnect रहता है, जो training का part है, we just try to bridge that. And we have so far have almost had almost 3,000 scholarship lectures. Almost 800 plus school are connected with us. Alhamdulillah, close to 3 lakh student has been benefit so far. And we have had almost 110 school training program and the parenting program with our team, with the student and the schools. The second flagship program is a EAC, wherein we organize job fair and job drives. So far, almost 360 plus job drives has been done, and wherein we are able to secure job for 21,000 people in 220 employability training programs, and close to 17,000 degree student has been benefited. Scholarship is again one of our focus program, and that's the reason we are holding this webinar as well. So close to 800 plus higher education scholarship is being granted so far through us, out of 860 plus 860 orphan education program. 425 families has been transformed by this self-employment assistant as well. We also have a AMP resource center wherein we have got around 660 plus career counselor, those who kind of counsel student about their career progression. 2,500 student counseled so far. We have almost had a 50 plus document on career guidance, which is available on our website freely, and 1,500 plus career chart has been distributed. AMP time to time organize award and partnership programs, and when we kind of facilitate, award those educationists, those who are doing excellent job in their domain, be it university, college, etc. We have almost 50 plus reputed skill partners, job fair partners, which include state government as well. To maximize the reach of AMP, we have tied up over 200 plus NGOs, wherein we are just with whom we are taking forward AMP vision to the villages. Our endeavor is to reach to the maximum people. There are few
a new digital initiative which is being taken care by AMP in last 1 year. India Zakat is one of it, one of that. And we try to support needy in terms of scholarship, in terms of employment, livelihood support, medical support. It's a crowdfunding platform. Alhamdulillah, in just 1 year, we are able to serve almost 1,500 plus causes, and almost 5 crore plus is being raised on this platform. India Mentors is again is a platform wherein we try to connect mentor and mentees. होता क्या है, बच्चे काफी लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उन्हें आगे बढ़ के करना क्या है. So industry experts, professors, or those who have excelled in their domain, they mentor these students. So AMP provide the platform at India Mentors to connect these mentor and mentees. It is another initiative which we have launched in December last year is a Empower Job. It is a job portal wherein thousands of jobs are available. Thousands of students have registered so far on this. So idea is AMP try to innovate, or COVID has given us the platform to all Indian, but AMP is doing all this digital initiative well before COVID time. Alhamdulillah. When it comes to the reach, AMP has got, Alhamdulillah, 140 chapters in 26 states. We have presence in over 16 countries, and we have almost 6,000 plus active members. When it comes to the online presence, we have got around 1.25 lakh members and professionals, those who are connected with us on various platform, social media platform. On behalf of AMP, I would like everyone, all the attendees, to join our social media platform, and you can also volunteer in best of your capacity with us. Please connect with AMP. You can log in our site ampindia.org. You can join as a volunteer with us. The contact detail is there. Now it is a time to introduce our guest of the day, our speaker of the day, Brother Muhammad Ashraf. He's an engineer by qualification, and academician, and social activist by his passion. Alhamdulillah, he run an organization called Pehchan India for the last 5 years, and in last 5 years he has done almost 100 and plus lectures, webinars, and scholarship support program. So without much ado, I would like, I welcome our speaker of the day, Mr. Muhammad Ashraf. Or I would request all of the participants, if you have got any query, please drop in the Q&A box. We will inshallah take it up. Thank you so much, Farooq bhai. Quite actually that thing, but still, I'll share that those things. I've already mailed it, right? So हम लोग बात कर रहे थे स्कॉलरशिप की, राइट? और ये जो स्कॉलरशिप की हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर. मतलब ये हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की. तो जब हम किसी स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से, तो हमें 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है. सबसे पहले ये कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, और हम जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं वहाँ हमारा और गवर्नमेंट से रिलेशन क्या होना चाहिए. ओके, तो स्टार्ट करते डेमोक्रेसी से. डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. ये आप सबने समझा होगा, सबने पढ़ा होगा, पर आज ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स की, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कोशिश करें और स्कॉलरशिप पे ज़्यादा फोकस करें कि कैसे हम डिमांड कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो हम टैक्स पे करते हैं. गॉट इट? आप सब टैक्स पे करते हैं. छोटा छोटा जो भी इंसान एक 5 रुपए का बिस्किट ले रहा है, उसमें भी 1 रुपए का टैक्स पे कर रहा है. तो ये जो टैक्स का पैसा होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको वापस मिलना चाहिए. और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको वापस मिलना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट सच में आपको वापस देती है. कैसे देती है? इस बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे हमारे हेल्थ स्कीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा सिक्योरिटी है और एजुकेशन है. तो इस साल मैं 2021-22 की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने
96 करोड़ 1000 करोड़ का बजट हमारे लिए रखा है, जिसमें सिर्फ मोमा का जो बजट है, नेशनल स्कॉलरशिप का बजट, वो है 52,000 करोड़ का, 52,000 करोड़। और ये 52,000 करोड़ जो है वो माइनॉरिटीज के लिए है। अब ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में माइनॉरिटीज कौन कौन है। माइनॉरिटीज कौन है बताइए? 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज हमारे देश में है। नंबर 1 मुस्लिम, नंबर 2 क्रिश्चियन, नंबर 3 सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसीज। अब ये आप लोग जानते हैं कि ये 6 माइनॉरिटीज है, और ये जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ, मोमा यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये इसी 6 कम्युनिटी के लिए ही सारे स्कीम्स लाते हैं। और जो हम मोमा जिस मोमा की बात कर रहे हैं, ये यही सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सारी डिटेल्स में बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग, कि स्कॉलरशिप होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई करें, एलिजिबल कौन कौन है, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं तो अप्लाई कर हम छोड़ देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, स्कॉलरशिप अप्लाई किया, अब आया या नहीं आया ये हम किस्मत पे छोड़ देते हैं। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 5 साल से इसी पर काम कर रहे हैं, और हम आपको ये बताने की गारंटी देते हैं कि अगर आपने सही तरीके से फॉर्म को भरा है और प्रॉपर फॉलो अप किया है अगर, तो आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग स्क्रीन कुछ, ओके कोई बात नहीं, हमारा स्क्रीन शायद शेयर नहीं हुआ। एनीवेज, मैं आपको कुछ डेटा बता रहा हूँ। जैसे 2019-20 का एक डेटा है, शायद मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहा हूँ। अगर आप उस डेटा को देखिएगा ना, तो 1,08,00,000 लोगों ने मोमा की स्कॉलरशिप को अप्लाई किया है ऑल ओवर इंडिया। 1,08,00,000, जिसमें से कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिला है वापस वेरिफिकेशन के बाद? तो फिगर है 77 लाख करोड़। समवेयर 25% जो है ना हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। 25%। यह वैसे देखने में फिगर बहुत कम लगता है, पर अगर आप ऑल ओवर इंडिया ये फिगर देखिएगा तो 25 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है हर साल। और यहां हम ये नहीं सोच पाते कि एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुआ, हम रहने देते हैं, चल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है कोई बात नहीं। बट अगर आप दूसरी तरफ देखिएगा वहीं पर कि इस ईयर 2020 और 21 में 1,17,00,000 लोगों ने अप्लाई किया था स्कॉलरशिप को, जिसमें से सिर्फ 70 कुछ लोगों को, 74% लोगों को स्कॉलरशिप मिला है, 66 लाख लोगों को। दैट मीन्स इस बार 34% रिजेक्शन हुआ है। कहां लास्ट ईयर 25% रिजेक्शन था, इस बार 34% रिजेक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं ना कि एवरी ईयर जो है हमारा रिजेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए अब ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ये रिजेक्शन को कैसे रोकें, और रोकने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हम कैसे फॉर्म को भरे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो अगर पीपीटी नहीं है, नहीं मिल पा रहा, हमारे पास टाइम भी नहीं है, कोई बात नहीं, पर आप जो है फिलहाल एक पेन और पेपर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सारा कुछ डिटेल शेयर करता हूँ मैं। और प्रोग्राम के बाद रजाक भाई या फिर IMAMP की टीम जो है आपको शायद वो मेरा स्क्रीन पीपीटी शेयर कर देंगे आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्कीम। यस, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे पीपीटी देख कर बताना पड़ रहा है। एनीवेज, तो ये जो स्कॉलरशिप होता है ना, ये सबसे पहला लोगों का कंफ्यूजन होता है कि स्कॉलरशिप जो है ये सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि स्कॉलरशिप्स गरीब लोगों के लिए। बहुत 90% स्टूडेंट, जब मैं ऑल ओवर इंडिया घूमता हूं, 90% स्टूडेंट्स यही दिमाग में रखते हैं कि स्कॉलरशिप्स गरीब लोगों के लिए है, मेरा इनकम उसमें नहीं आता है तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। जबकि फैक्ट ये है कि स्कॉलरशिप्स बहुत तरह से डिफाइन किया जाता है। सेट कि अगर हम मेल हैं या फीमेल हैं उसके बेसिस पे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं। सेट अगर हम ब्लैक हैं या वाइट हैं उसके बेसिस पे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं। सेट हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप है। हमारा इनकम पे स्कॉलरशिप है। और सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स इस बेसिस पे होता है कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं हैं, मतलब आपके मार्क्स पे बेसिस है।
और अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 90% स्कॉलरशिप्स आपके मार्क्स के बेसिस पर ही होता है। सिर्फ कुछ परसेंट स्कॉलरशिप्स है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे होता है, और अगर आप उसमें लड़की है फीमेल है तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप के चांसेस कहाँ कहाँ स्कॉलरशिप मिलता है, आइए अब देखते हैं हमारे मोमा का जो 3 स्कीम है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है हमारा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, दूसरा है हमारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, और तीसरा है हमारा मेरिट कम मींस। अब ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होता है? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप वैसे स्कॉलरशिप को बोलते हैं हम जो मैट्रिक या उससे पहले होता है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर के 10 तक। याद रखिएगा, ये जो हम स्कीम डालते हैं ना, जब हम मोमा को फॉर्म भर रहे होते हैं तो हम स्कीम डालते हैं, और वो स्कीम में आप देखिएगा कि 3 स्कीम आता है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड मेरिट कम मींस। अगर आपने यहाँ पे जरा भी गलती की, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है या फिर बहुत नुकसान होता है। मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा कैसे। तो पहले हमें समझना है प्री मैट्रिक जो कि सिर्फ 10th तक के लिए ही है। पोस्ट मैट्रिक क्या है? अब जैसा इंग्लिश मतलब है इसका पोस्ट मैट्रिक, आफ्टर 10th। तो आफ्टर 10th में आपका बीटेक भी है, आफ्टर 10th में आपका लॉ भी आता है, बीकॉम भी आता है, बीसीए भी आता है, बीबीए भी आता है। लेकिन पोस्ट मैट्रिक को ना इन्होंने 2 पार्ट में डिफाइन किया है। जैसे पोस्ट मैट्रिक में हमारा एक प्रोफेशनल कोर्सेज हो गया, टेक्निकल कोर्सेज हो गया, और एक नॉर्मल कोर्सेज हो गया। अब नॉर्मल कोर्सेज मतलब हमारा बीकॉम, बीएससी, ये सारे नॉर्मल कोर्सेज में आते हैं। एंड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या है हमारा? बीटेक, एमसीए, एमबीए, लॉ, एमएसडब्ल्यू, ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारा आता है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज में। तो जब आप दूसरे स्कीम की बात करें हम पोस्ट मैट्रिक, तो यहां पर आप ये तो समझ जाएंगे कि मैट्रिक के बाद का है, बट ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक के बाद के सारे कोर्सेज पोस्ट मैट्रिक में आ जाए, बल्कि मैट्रिक के बाद कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज है जो पोस्ट मैट्रिक में आते हैं, और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आपके मेरिट कम मींस में आते हैं। तो ये डिफाइन बहुत जरूरी है, आप इसको देखिएगा। इसके लिस्ट आपको साइट पे मिल जाएगा, और हमने एक चैनल है हमारा अनाबिया क्लासेस में, मैंने उसमें वीडियो ही बनाया है और ये सारे कोर्सेज डिफाइन किए हैं। यहाँ आपको प्रॉब्लम क्या होगा ना, कि मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज आप बीटेक कर रहे हैं। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि बीटेक में आपका जो स्कीम है वो है मेरिट कम मींस। अब मेरिट कम मींस का जो पैसा मिलता है, जो फंड आता है, जो वो है अप टू 30,000। तो अगर आपने पोस्ट मैट्रिक सोचा करे, बीटेक भी पोस्ट मैट्रिक है और बीबीए भी पोस्ट मैट्रिक, क्यों ना हम बीटेक को भी पोस्ट मैट्रिक कर दें, तो वहां पर आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट तो हो जाएगा, पर जहां आपको 30,000 आने को, वहां आपको सिर्फ 6,000, 7,000 या मैक्स टू मैक्स 10,000 ही आएंगे। तो सोचिए आपका 4 साल का बीटेक है, और आपने पहले ही अगर एक बार मिस्टेक कर दिया तो अगले आने वाले 4 साल तक आपको हर साल कितने पैसे आ रहे हैं? 10,000। आपको आने कितने चाहिए? 30,000। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो स्कीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप स्कीम डालिएगा तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका जो पर्टिकुलर कोर्स है वो किस स्कीम में आता है। गॉट इट? आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, एलिजिबिलिटी। तो मुझे लग रहा आपने ये समझ लिया प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस। एक बार रिपीट करता हूं मैं, प्री मैट्रिक 10th से पहले, पोस्ट मैट्रिक 10th के बाद, मेरिट कम मींस 10th के बाद जो प्रोफेशनल कोर्स है या फिर जो टेक्निकल कोर्सेज हैं। ठीक है, आइए अब आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना कि सर स्कॉलरशिप तो है, पर इसमें एलिजिबल कौन कौन है? मैं मोमा की बात कर रहा हूँ, कौन एलिजिबल है? तो एलिजिबिलिटी होने के लिए ना सबसे पहले ये जरूरी है कि आप 6 नोटिफाइड कम्युनिटी से बिलोंग करें। आई एम रिपीटिंग, 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब ये माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन कौन आता है आपको अच्छे से पता है। वी हैव मुस्लिम्स, वी हैव सिख, वी हैव जैन, वी हैव बुद्धिस्ट एंड वी हैव पारसीज। ओके, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पारसीज। एक मिनट बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। यस, हाँ, बुद्धिस्ट एंड पारसीज। ओके, तो ये 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज है। अगर आप इस पर्टिकुलर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो गए। मतलब आप जो गवर्नमेंट हर साल, ये गवर्नमेंट बताती है कि हम हर साल 1 करोड़ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। सिर्फ आप इस 6
डिफाइंड नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी से है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्या है? दूसरा एलिजिबिलिटी ये है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर आपका जो लास्ट ईयर का जो मार्क्स है वो 50% होना चाहिए। अब यहाँ पे 60 या 90% जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 50% अगर ला रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और अगर नेक्स्ट ईयर आप रिन्यू करा रहे हैं और आपका 50% नहीं आया तो ध्यान रखिएगा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए और हर साल रिन्यू करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप हर साल ये जो 50% मार्क्स है इसको मेंटेन रखें। जहां कम कीजिएगा एप्लीकेशन उसी साल रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा एलिजिबिलिटी है कि आप जो है हाँ, ये 3 एलिजिबिलिटी हो गया आपका रिलीजन, कास्ट और ये तीसरा एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गर्ल्स माइनॉरिटी में आते हैं, गर्ल्स में अगर आते हैं तो आपके लिए 30% सीट रिजर्व्ड है इसमें भी। मतलब 30% तो आपको मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं कि गर्ल्स को सिर्फ 30% ही मिलेगा, ये 30% गर्ल्स को कंपलसरी मिलेगा। उसके बाद अगर ज्यादा लड़कियों ने अप्लाई किया तो ऑब्वियसली ये बढ़ेगा भी। दिस इज नॉट द सीलिंग, ओके। 30% मिलेगा ही, उसके बाद अगर और लड़कियों ने अप्लाई किया तो और भी ज्यादा मिलेगा। पर से इट कि सिर्फ 20 लड़कियों ने अप्लाई किया और 110 लड़कों ने अप्लाई किया तो 110 में से लड़कों का कुछ रिजेक्ट हो सकता है, बट ये जो 20 लड़कियां हैं इनको 100% स्कॉलरशिप मिलना ही मिलना है अगर उन्होंने सब कुछ अच्छे से फॉलो किया तो, फॉर्म को उसने अगर सही से भरा तो, ओके। तीसरा हमारा है डॉक्यूमेंटेशन। आप लोगों की मेरी वीडियो क्लियर आ रही है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है। यस यस, थैंक यू थैंक यू। तीसरा है हमारा डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये बहुत जरूरी है समझना कि हम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने वाले हैं, क्योंकि एप्लीकेशन जो रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है वो टोटल डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स पर। और डॉक्यूमेंट्स हमारे दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो हम हर साल रिन्यू करते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइफ में सिर्फ एक बार ही बनता है। तो पहले हम वैसे डॉक्यूमेंट को डिस्कस करेंगे जो आपको सिर्फ लाइफ में एक बार बनाना है, बनाकर उसका अपना एक फाइल बना लेना है और हर साल अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट मींस आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं का मतलब ये है कि स्टेट के आप बिहार से हो, बिहार से हो, आप गए हो दिल्ली अपना एजुकेशन पढ़ने गए हैं दिल्ली आप, या आप पुणे गए हैं या आप मुंबई गए हैं, पर आप हैं कहाँ से? आप हैं प्रॉपर बिहार से। तो आपका डोमिसाइल स्टेट जो है वो बिहार होगा और आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का बनाना होगा? बिहार का बनाना होगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो स्कॉलरशिप होता है ये भले ही सेंटर से आता है पर प्रॉपर स्टेट सब्जेक्ट है। मतलब ये स्कॉलरशिप आपको आपका स्टेट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के हेल्प से। गॉट इट? सो डोमिसाइल कहाँ कर लेंगे हम लोग? जो डोमिसाइल आपके जहां से आप बिलोंग करते हैं, ना कि जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और ये भी लाइफ में सिर्फ एक बार ही बनाना पड़ता है। दूसरा है हमारा आधार कार्ड। अब ये आधार कार्ड ऑब्वियसली आजकल हम सब लोग बना रहे हैं। आधार कार्ड बनाना है आपको, जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड में एक चीज मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं या फिर जो भी वॉलंटियर से बोलता हूं, मैं ये बात बच्चों को हमेशा बताना है कि आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर होता है जो आपके आधार कार्ड से लिंक होता है। हम क्या करते हैं ना कि 6 महीने बाद, साल भर बाद उस नंबर को चेंज कर देते हैं। अगर आपने उस नंबर को चेंज किया तो आपका स्कॉलरशिप क्या आपका फॉर्म ही फिल नहीं होगा, क्योंकि मैसेज आता है फॉर्म में, वेरीफाई होता है। तो अगर आप अपने मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक है, अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चेंज मत कीजिए। अगर आपने चेंज कर दिया है तो इमीडिएटली स्कॉलरशिप डेट स्टार्ट होने से पहले पहले जा करके आप अपने आधार कार्ड को क्या कीजिए, मोबाइल नंबर फिर से रजिस्टर्ड कीजिए, नए वाला मोबाइल नंबर। गॉट इट? तो आधार कार्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाकर के हम अपने जो नया नंबर है उसको अपडेट करें, या फिर अगर कोई नंबर अपडेटेड नहीं है आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो नंबर को लिंक करवाएं, वरना स्कॉलरशिप का रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टूडेंट फोटोग्राफ है, वो तो ऑब्वियसली सबके पास होता है। एक और प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं ना वो है फी रिसीट ऑफ करेंट ईयर।
बहुत लोगों के पास ना पैसा नहीं होता फी पे करने को, तो वो लोग बाकी सब डॉक्यूमेंट दे देते हैं, पर चूंकि वो फी नहीं पे कर रहे होते हैं, इसलिए उनके पास जो है ऑब्वियसली फी रिसीट नहीं होता है। तो अगर आपके पास फी रिसीट नहीं है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी फी रिसीट है आपके पास, वो फी रिसीट मतलब फीस पे कीजिए और वो फी रिसीट को जाके कॉलेज में लगाइए। सेकंड, प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट। अगर आप 18 इयर्स के अबव हैं तो आपका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, और साथ में वो जो आपका बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब पिछले 2 सालों से कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वेबिनार है इसलिए मैं सब कुछ शेयर कर दे रहा हूँ। मुझे कम से कम 500 से 1000 फोन कॉल्स आए ऑल ओवर इंडिया में कि जब दो बैंक आपस में मर्ज हो रहे थे तो लोगों का आईएफएससी कोड चेंज हो रहा था। और जब हम स्कॉलरशिप के लिए जब रजिस्टर्ड करते हैं हम लोग, तो वहां पर आपको एक बैंक का आईएफएससी कोड डालना होता है। तो से इट के आपका जो है ना बैंक ऑफ बड़ौदा में से इट आपका बैंक अकाउंट था, वहां का आपका आईएफएससी कोड था। अब बैंक ऑफ बड़ौदा जो है सपोज कीजिए कि एसबीआई से मर्ज कर गया, तो आपका आईएफएससी कोड चेंज हो गया। जब आईएफएससी कोड चेंज हो गया, इस वजह से बहुत लोगों का इस साल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोशिश कीजिए वैसे बैंक में अकाउंट खुलवाने का जिस बैंक का मर्ज होने के चांसेस बहुत कम है। से इट एसबीआई जिसके चांसेस बहुत कम है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ये जो बैंक है, मैंने रिसर्च किया है कि इनका अभी फ्यूचर में 5 साल में ना तो ये बंद होने वाले हैं, ना तो ये किसी के साथ मर्ज होने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है कि अच्छे जगह पे ही अपना बैंक अकाउंट खुलवाइएगा। दूसरा, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट। अभी बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, हम कहाँ से लेते हैं? ये जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के साइड में बिल्कुल साइड में राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करके आपको एक फाइल आएगा, मतलब एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, भरना है और अपने स्कूल से, अपने प्रिंसिपल से एक साइन ले लेना है। एक बार आपने वो स्टैंप ले लिया, वही आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। आप उसको ले जाकर अपने कॉलेज में या फिर स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। एक होता है सेल्फ अटेस्टेड माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। मैं ये सब क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब ये जो सेल्फ अटेस्टेड माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, इसमें देखिए आपके क्या होता है कि जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है वो एक सिंपल फॉर्म होता है। वो फॉर्म आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एएमपी में किसी से भी आप मांग सकते हैं, वो लोग आपको व्हाट्सएप कर देंगे। आप मुझसे भी मांग सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। उस फॉर्म को निकालना है, सिंपल फॉर्म भरना है और खुद से अटेस्ट करना है। खुद सेल्फ अटेस्टेड मीन्स खुद से अटेस्ट करना है दैट आई बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, दैट्स इट। इसमें कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। लोग 100-100 रुपए, 200 रुपए चार्ज ले लेते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। खुद से साइन डाउन प्रिंट निकालना है, साइन करना है और दे देना है। दूसरा, सेल्फ अटेस्टेड प्रीवियस ईयर मार्कशीट। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 50% तो होना चाहिए, तो 50% जब होना चाहिए तो वो 50% के लिए आपको मार्कशीट लगेगा। उस मार्कशीट को आपको खुद से अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। ये सारी चीजें आपको दिखाना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट में क्या है आपका कि हर साल ये चेंज होता है, तो आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को हर साल आपको रिन्यू करवाना होता है। तो देखिए, जो लोग सोचते हैं ना कि 1000, 2000 या 5000 स्कॉलरशिप मिलना है, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो जा रहा है, तो याद रखिए कि लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स पैसा किसी में खर्च नहीं होता है। आपको सिर्फ क्या खर्च होता है पैसा, इनकम सर्टिफिकेट में, और वो भी 100 रुपए से कम में बनता है। अगर आप थोड़े जागरूक है तो 100 रुपए से कम में आराम से बनता है। ऐसे लोग मार्केट में जो बहुत सारे लोग हैं, ब्रोकर कह लीजिए, 5-5 हजार रुपए ले लेते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ना जागरूक बनिए, इस चीज को समझिए कि ये सारी चीजें एक बार बनाना है। डॉक्यूमेंट को अपना एक स्कॉलरशिप का फाइल बना लेना है। फाइल बनाने के बाद एवरी ईयर आपको क्या लगेगा, सिर्फ एक इनकम सर्टिफिकेट। उस इनकम सर्टिफिकेट को आप रिन्यू करवाइए हर साल और स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिए। याद रखिए, स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर के पीएचडी तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आप हर साल एप्लीकेशन डाल सकते हैं और हर साल एप्लीकेशन ले सकते हैं। मैं ऐसे 1000 स्टूडेंट्स को जानता हूं मैं, जो कई सालों से कंटिन्यूसली स्कॉलरशिप ले रहे हैं। ये 6 से स्टार्ट किए थे उन्होंने और पीएचडी तक वो लोग स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं और हर साल आता है इसमें, क्योंकि 1 करोड़ बहुत बड़ा फिगर होता है। ओके, तो ये रहा हमारा। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट था सिलेक्शन प्रोसीजर। बहुत लोगों को इस चीज का डाउट होगा ना कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, हम इसको कैसे सेलेक्ट, स्कॉलरशिप जो होता है गवर्नमेंट ये सिलेक्ट कैसे करता है। और अगर आप ये समझ गए ना कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो आप पीछे लगकर मैंने शुरुआत में कहा था डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, देशभक्ति, जब इस सब की बात करते हैं ना हम, तो आपके अंदर एक एक्टिविज्म जगाने की कोशिश होती है कि आप जो है ना इस देश के राजा हो, ये पैसा आपका अपना टैक्स का पैसा है, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब कैसे उसको निकालें। तो वही मैं आपको अब बता रहा हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके अंदर थोड़ा सा एक्टिविज्म होना चाहिए, आपको पीछे लगना होगा, निकालना होगा पैसे को, क्योंकि ये आपका पैसा है। तो सबसे पहले आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको एक सेट बनाना है, डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बनाना है, और वो सेट बनाकर अपने कॉलेज में या फिर अपने स्कूल में जाकर के दे देना है। और अगर आप 10th से ऊपर मतलब पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस में है अगर आप, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड भी करना है। मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बना रखा है इसमें भी, और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसका स्कॉलरशिप अमाउंट 50,000 से ऊपर है उसी को जो है वहां पर अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। पर आप जो है 50,000 से नीचे है आप तब भी अपलोड कीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रहा है लोगों में, क्योंकि जो पोस्ट मैट्रिक वाले हैं जिनका 7,000 है उनका भी एप्लीकेशन ये लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं। क्यों? डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। अब साफ साफ लिखा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये लोग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने के वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर रहे हैं। तो यहां आपको क्या करना है, अगर आप प्री मैट्रिक हैं 10 तक हैं तो एक फाइल बनाइए और सारा फाइल स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ अपने कॉलेज में ले जाकर प्लेस कर दीजिए। बट अगर आप पोस्ट मैट्रिक में हैं तो दोनों प्रोसेस कीजिए। दोनों प्रोसेस मतलब फाइल बना करके प्रेजेंट भी कर दीजिए और सारे फाइल को वहां पर जाकर अपलोड भी कर दीजिए। ये आप किसे प्रेजेंट करेंगे, स्कूल लेवल पे या तो कॉलेज लेवल पर। अब ना आप जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी स्कूल में या कॉलेज में, इमीडिएटली कल जाकर पता कीजिएगा कि आपके स्कूल का नोडल ऑफिसर कौन है। जितने भी स्कूल्स होते हैं या फिर कॉलेज होते हैं वो सब लोग इसमें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में रजिस्टर्ड करते हैं, और एक जो टीचर रजिस्टर करता है वही आपका नोडल ऑफिसर होता है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है पता करना कि मेरे स्कूल का नोडल ऑफिसर कौन है। जो भी नोडल ऑफिसर है आपको उसके साथ मिल के रहना है, उसके पीछे पड़े रहना है। और जैसे ही स्कॉलरशिप का डेट आता है इमिडिएटली 2 से 3 दिनों में जा करके आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भर करके नोडल ऑफिसर को पकड़ना है, पकड़ कर बोलना है भाई मेरा एप्लीकेशन को जो है ना आप वेरीफाई कर दो। अब वहां पर क्या होगा, शुरुआत में हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन में कुछ एरर हो सकता है। अगर एरर होगा तो आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा कि अपने एप्लीकेशन को डिफेक्ट करवाएं। ध्यान रखिएगा, डिफेक्ट करवाना मतलब एक प्रोसेस होता है जहां आप बोलते हो ठीक है मेरा डॉक्यूमेंट एरर है ना, तो मैं डिफेक्ट करता हूं, मैं फिर से अप्लाई करूंगा। तो आपके पास ये भी चांसेस है कि आप अपने, अगर आपको कुछ एरर है तो उसको इमीडिएटली डिफेक्ट करें। डिफेक्ट करने के बाद फिर से फॉर्म भरें और नोडल ऑफिसर को कॉन्टैक्ट में रख करके उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के आप स्कूल लेवल पर वेरीफाई करवा लें। एक बार स्कूल लेवल वेरीफाई हो गया तो आपका 30% काम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके वेरीफाई करवाना है। अब यहाँ पर ना बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेवल। सेठ मोहम्मद अशरफ, मैं अगर पुणे में पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं रहता हूँ जमशेदपुर झारखंड से, तो अगर मैं जमशेदपुर झारखंड में रह रहा हूँ और मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जाकर बोलूंगा कि सर मेरा वेरीफाई करा दो, नो, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन। मैंने आपको शुरू में डोमिसाइल बताया था कि डोमिसाइल क्या होता है, जहां आप रहते हो। तो अब ये जो एप्लीकेशन है ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जाके वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवा दिया आपने, देन डोमिसाइल स्टेट लेवल पे वेरीफाई होता है और आपको आपका फंड उसी डोमिसाइल लेवल से, मतलब अगर झारखंड के हो तो झारखंड का जो मोमा ऑफिस है वहां से आपको फंड ट्रांसफर होगा। और अगर आप महाराष्ट्र में ही हो, महाराष्ट्र में ही पढ़ रहे हो, कॉलेज भी महाराष्ट्र का, डोमिसाइल भी महाराष्ट्र का, तो ऑब्वियसली सब कुछ आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही करेगा। या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में आप हो और वही पढ़ रहे हो तो वो स्टेट ही सारा प्रोसेस करेगी। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो मैं फिर बता रहा हूँ डोमिसाइल आपको ये करना है। और एक चीज और, आपका जो स्कूल है, आपका जो कॉलेज है, अगर डिफरेंट स्टेट से हो
तो वो लिख कर देते हैं, ये अप्रूव करते हैं बोनाफाइड कि हाँ ये बच्चा जो है झारखंड से आया है और मेरे पास पढ़ रहा है, हमारे कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो एप्लीकेशन प्लेस करते हैं और हमारा वेरिफिकेशन वहाँ पर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बात समझ गए होंगे। मैं आगे कुछ और स्लाइड लेता हूँ, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। यस, तो ये रहा हमारा एलिजिबिलिटी। हमने डिस्कस किया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, और हमने सबसे इम्पोर्टेंट ये डिस्कस किया कि एप्लीकेशन जब आप फिल कर रहे हो तो कैसे गवर्नमेंट के पीछे पड़ना है। दैट रिक्वायर्ड एक्टिविज्म। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये आपका हक का पैसा है, और जब अगर आप उस हक के पीछे पड़ोगे तभी मिलेगा। इंडिया में ना ऐसे सुस्त रहने से, एप्लीकेशन फिल करके इंतजार करने से यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। आपको पीछे पढ़ना पड़ेगा, अपने स्कूल के पीछे पढ़ना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट के पीछे पढ़ना पड़ेगा। और ये कोई बहुत टफ काम नहीं है। आप सिंपल अगर आपने एक मेल भी डाल दिया सबको ना, तो मेल भी बहुत काम आता है, पर सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सेट आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन डालना है कि मेरा एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ। गवर्नमेंट क्या करती है ना, इनको लगता है कि बच्चे हैं पूछेंगे नहीं, तो लोग जानबूझ कर रिजेक्ट करते हैं। बट अगर आपने मेल डाला तो हो सकता है कि इस साल रिजेक्ट हो गया, नेक्स्ट ईयर लोग आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो एक्टिविज्म का ये फायदा होता है, अगर आपने एक रिटर्न डॉक्यूमेंटेड वे में सब कुछ डाल दिया ना कि भाई मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, क्यों रिजेक्ट हुआ है, तो हो सकता है वो लोग कोशिश करें और आपके एप्लीकेशन दे भी दे। पर आपने छोड़ दिया तो वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं है, बच्चे ऐसे ही हैं, इनको ज्यादा गरज नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है हाउ टू अप्लाई। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर अप्लाई कैसे करें। ज़्यादातर बच्चे जो है साइबर कैफ़े जाते हैं, साइबर कैफ़े में अप्लाई करते हैं। मेरा उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश कीजिए कि स्कॉलरशिप को खुद से भरने का। क्योंकि क्या होता है ना कि स्कॉलरशिप जितना अपने बारे में आप जानते हैं, शायद साइबर कैफ़े कभी नहीं जान पाएगा जितना आप जानते हैं। दूसरी बात है ना कि आजकल बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, फॉर्म कैसे भरना है। तीसरी बात है कि सेठ आपको जो है स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ मोमा अप्लाई करोगे। आप बहुत सारे स्टेट के अप्लाई कर सकते हो, कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, और बहुत सारे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो आप। तो आप कितनी बार साइबर कैफे जाओगे? कोशिश कीजिए खुद से अप्लाई करने का। अगर आप खुद से सीखेंगे तो ऑब्वियसली अपने लोगों को भी बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है, और इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब आप खुद से फॉर्म भरते हो ना, तो एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है? हमारा एक वेबसाइट है www.scholarship.gov.in। अब scholarship.gov.in पर आपको जाना है और जा करके वहां पर रजिस्टर करना है। हम रिपीटिंग, जाके वहां पर रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, अब मैं इसमें ही बता रहा हूँ लोग क्या क्या गलतियां करते हैं। सेट 1 साल मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया, मैंने स्कॉलरशिप ले लिया, लेकिन वो जो आईडी और पासवर्ड होता है ना, वो पता नहीं किस कोने में होता है। तो अगले साल जाकर जब हम ढूंढते हैं तो हमें मिलता नहीं है वो। मोबाइल नंबर भी चेंज हो चुका होता है। तो कैसा होता है ना कि जो स्कॉलरशिप आपको रेगुलर मिल रहा है, इस साल मिल गया, आप अगले साल रिन्यू नहीं करवा पाते हैं। तो जैसा कि मैं सबको कहता हूं कि आपका एक स्कॉलरशिप का फाइल होना चाहिए, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उस फाइल के साथ साथ आपका उसी फाइल में आपका यूजर आईडी और पासवर्ड लिख कर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगले साल जब आया रिन्यू करवाने के लिए फिर से ढूंढ रहे आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है। तो जब आप वो फाइल बनाएंगे, एवरी इंडिविजुअल को, अगर घर में 3 भाई हैं तो तीनों भाई को अपना, या 3 भाई 1 बहन है, सबको अपना अलग अलग एक स्कॉलरशिप फाइल बनाना है। उस फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, जितने भी जगह आपने रजिस्टर्ड किया है उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड लिखना है, और हर साल रिन्यू करना है। वरना भूल गए तो आपका स्कॉलरशिप अगले साल रिन्यू नहीं हो पाएगा। तो ये है हमारा अप्लाई करने का। खुद से रजिस्टर्ड कीजिए, अपना आईडी और पासवर्ड बचा के रखिए। और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है ना, इसके लिए भी एक वीडियो है एक्चुअली। आज मेरा पीपीटी शेयर नहीं हो पाया। मैं अगर कभी दोबारा हमारा प्रोग्राम हुआ इस तरह का, तो मैं दोबारा भी इस पे करने को तैयार हूँ। मैं आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया मेरा। एक्चुअली नया लैपटॉप लिया हूँ और ये मैक का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। एनीवेज, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में लोगों को जानना होता है वो है कि मोमा में जो है कितने पैसे मिलते हैं। गॉट इट।
सबसे लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट कि पैसे कितने मिलते हैं और हम अप्लाई करना सही है या नहीं। देखिए, अगर पैसे की बात करें तो स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर सिक्स तक जो है ना, इसका अमाउंट बहुत ही कम है। बहुत कम मीन्स हम लोग डिस्कस भी नहीं करते उसके बारे में, क्योंकि जितना आप खर्च करोगे उतना पैसा में आपका मतलब ये उतना पैसा आएगा भी नहीं। हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं ना सिक्स्थ ऑनवर्ड से, और इसलिए मैं अपने सारे सेमिनार में बोलता हूँ कि जो मोमा है ना, ये सिक्स्थ ऑनवर्ड ही है। तो सिक्स्थ ऑनवर्ड में कैसा है कि सिक्स से लेकर के सिक्स सेवन्थ एट, ये आपको 1000 रुपीज से लेकर 2500 तक पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको एक बेनिफिट दे दिया है कि यहाँ पर आपको 10th तक के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इनकम सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी अगर लिख कर दे देंगे कि मेरा एनुअल इनकम 30,000 है या 40,000 है, वो एप्लीकेबल है 6, 7, 8, 9, 10 तक के लिए। लेकिन जो पैसा मिलता है 6, 7, 8 में, वो है 1500 से लेकर के 2500 तक। एक्सक्यूज मी। जैसे ही आप 9th एंड 10th में जाते हैं, वहां आपका अमाउंट हो जाता है 6000 से लेकर के 8000 तक। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका स्कूल फी इंक्लूड होता है। अगर आप हॉस्टलर हैं तो आपका हॉस्टल के चार्जेस इंक्लूड उसमें होते हैं। और अगर आप डे स्कॉलर हैं, डे स्कॉलर मीन्स आप घर से स्कूल जा रहे हैं, मतलब अपना घर है आपका या हॉस्टल में नहीं रह रहे आप, तो उनके लिए आपको कन्वीनियंस चार्जेस मिलता है, बस के लिए फेयर एंड ऑल दिस। तो ये टोटल 6000 से लेकर 8000 तक मिलता है आपको 9th और 10th में। और सेम अमाउंट है 11th एंड 12th के लिए, तो 6 से लेकर 8000 तक। एक बार जब आप 12th के बाद गए तो ये सारा आपका पोस्ट मैट्रिक है, और पोस्ट मैट्रिक में अलग अलग स्कीम्स में जो है आपको अलग अलग अमाउंट मिलता है। जैसे सेट के आप डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा में अगर आपकी फीस है 20,000 रुपीज, तो इनका डिप्लोमा में एक कैप होता है। कैप मीन्स आपको 10,000 तक मिलेगा, आपकी फीस अगर 20,000 है तो। और अगर आपकी फीस सिर्फ 5,000 है तो वो लोग आपको सिर्फ 5,000 देंगे, मतलब जितना फीस है उतना ही मिलेगा। अगर फीस ज्यादा बढ़ते गया तो स्कॉलरशिप भी बढ़ेगा, कब तक? एक कैप तक, एंड दैट कैप इज 10,000 फॉर डिप्लोमा। इंजीनियरिंग के लिए ये कैप है 25,000 फीस प्लस 5,000 फॉर हॉस्टल। तो अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको ये 30,000 रुपीज मिलता है इंजीनियरिंग में। आपको ये एमबीए में मिलता है 30,000 रुपीज, आपको एमसीए मिलता है 30,000 रुपीज, अगर आप लॉ कर रहे हैं 30,000 रुपीज। ये सारा आता है मेरिट कम मीन्स में। और अगर आप पोस्ट मैट्रिक में हो तो पोस्ट मैट्रिक में जनरली फीस बहुत कम होता है, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, 12,000 तक मिलता है। डिपेंड करता है आपका फीस कितना है। तो बीकॉम वालों का फीस अगर 4,000 है तो आपको 4,000 ही मिलेगा। पर वही बीकॉम का फीस अगर 15,000 है तो इनका जो सर्टेन कैप होता है 8,000, 9,000 का, तो आपको मैक्सिमम कैप 9,000 तक देते वो लोग। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमा के अंदर में ही अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, उस समय अगर आपने जेआरएफ निकाला है तो आपको जो है एवरी मंथ 31,000 रुपीज मिलता है। आई एम रिपीटिंग, एवरी मंथ 31,000 रुपीज मिलता है आपके रिसर्च के लिए या फिर आपके फेलोशिप के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारा स्कॉलरशिप से रिलेटेड सब था। ये मोमा का है एक्चुअली। 1 घंटा बहुत कम है इसके लिए, बट फिर भी हमने बहुत कोशिश किया, काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश किया है। और अगर एमपी फारूक साहब और रज़ाक साहब ने मौका दिया हमें ना, तो नेक्स्ट टाइम मैं अपनी पीपीटी के साथ भी आऊँगा। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि पीपीटी नहीं बन पाया, आई मीन नहीं शो कर पाया मैं। बट स्टिल, फिर भी कुछ भी डाउट है आपको इससे रिलेटेड, या फिर आप कोई भी क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड, तो आप जो है एएमपी को फॉलो कर सकते हैं। मैं भी एएमपी से जुड़ा हुआ हूँ। उसके अलावा मेरा एक प्रॉपर चैनल मैंने बना रखा है, क्योंकि जो भी मैं रिसर्च करता हूँ ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जो भी मैं रिसर्च करता हूँ ना, वो इन्फॉर्मेशन जो बच्चों के क्वेरीज होते हैं उनके सॉल्यूशन को मैं लेता हूँ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है अनाबिया क्लासेस का, मैं उसमें डालने की कोशिश करता हूँ मैं। तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं, आप हमसे एमपी से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ भी मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। जो मेल आईडी है उस पर भी आपको दिया गया है अभी, फारूक साहब शेयर करेंगे मेल आईडी, उसमें भी शेयर कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो जरूर आप मुझसे पूछें। और लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं कि स्कॉलरशिप मिला मुझे नहीं मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सबसे पहले आप ये सोचिए कि अगर आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट होता है तो क्यों होता है। जब अगर आप क्यों के पीछे पड़ जाएंगे
तो इस साल शायद रिजेक्ट हो जाए, अगले साल किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके स्कॉलरशिप को रिजेक्ट करने का। और गवर्नमेंट ये साफ साफ कहता है कि हम हर बच्चे को जो एलिजिबल है, हम हर बच्चे को स्कॉलरशिप देंगे। तो जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम हर बच्चे को स्कॉलरशिप देंगे, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट के पीछे लगकर उस स्कॉलरशिप को ले। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह अशरफ भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से बताया। और जो आपने दो तीन चीज़ें कही मैं उसको टच करना चाहूँगा। एक जो आपने मशवरा सबको दिया कि हमें एक्टिविज्म की तरफ जाना पड़ेगा, मसलन ये है कि हमें पीछा नहीं छोड़ना है। अगर कहीं पर भी हमारी एप्लीकेशन स्टक हो गई है स्कूल या इंस्टीट्यूट के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे या और आगे लेवल पे, हमें फॉलो अप करके उसको करवाना है। तो ये आसान भी है अगर आप सही तरीके से आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करे हैं। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है जो स्टूडेंट्स इसमें हैं या जो पेरेंट्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अपने सब डॉक्यूमेंट्स जैसे बताए गए हैं, चाहे वो एड्रेस प्रूफ हो, चाहे वो ये मिसाइल हो, इनकम का प्रूफ हो, वो जितने भी चीज़ें हैं वो अपना बिल्कुल करेक्ट करवा के रखें स्पेलिंग वगैरह के साथ, ताकि कि कोई एप्लीकेशन कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी लेवल पे स्टक ना हो, क्योंकि उसको बाद में रिजॉल्व कराने में हो सकता है कि वो साल भर ही गुजर जाए, फिर हम दूसरी क्लास में आ जाएंगे और वहाँ की स्कॉलरशिप के लिए बात करेंगे। जज़ाकल्लाह, काफ़ी सवाल आए हुए हैं क्योंकि हम लोग फेसबुक पर भी लाइव हैं। इसके साथ साथ अशरफ भाई आप सवाल Q&A में ऑनलाइन भी जवाब दे सकते हैं। कुछ सवाल मेरे पास आए हुए हैं तो मैं आपको लेता चला हूँ। मेरे पास कुछ फेसबुक से आए हुए हैं और कुछ चैप्टर्स के वो लोगों ने हमारे को आपके प्रोग्राम के ताल्लुक से सवाल ये भेजे हैं। एक साहब पूछ रहे हैं कि क्या ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट है, जैसे आपने बताया 6 कम्युनिटीज हैं, उसमें क्या कम्युनिटीज वाइज भी कुछ परसेंटेज एलोकेट है एज पर ये पॉपुलेशन, या फिर वो एक पूल जो है वो कलेक्टिव पूल है? जी हाँ, देखिए ये प्रॉपर परसेंटेज वाइज डिवाइडेड है। से इट अगर मुस्लिम्स 80% है तो ये फंड 80% मुस्लिम्स के लिए डिवाइडेड है। अगर जैन 1% है तो 1% उनके लिए डिवाइडेड है। दूसरी बात, ये स्टेट वाइज भी एलोकेटेड है। स्टेट के अगर हम महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में अगर 30%, अगर स्टेट 80% मुस्लिम्स महाराष्ट्र में या फिर 70% है, तो वो अमाउंट महाराष्ट्र में 70% मुस्लिम्स को ही दिया जाएगा, दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता है। और अगर ट्रांसफर होगा तो मुस्लिम्स में ही होगा पर दूसरे स्टेट में होगा। शुक्रिया। तो ये बिल्कुल डिफाइंड है। शुक्रिया। अगला सवाल है कि क्या ये स्कॉलरशिप जो है वो डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज पर भी अप्लाई होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कोर्सेज के लिए है सर। अच्छा, रेगुलर कोर्सेज के लिए है। अगला सवाल आया हमारे पास कि स्कॉलरशिप स्कीम्स और इंसेंटिव स्कीम्स जो है, मोमा की साइट पे कहीं इस चीज का ड्रॉप डाउन में एक ऑप्शन था, तो इन दोनों में फर्क क्या है, स्कॉलरशिप स्कीम और इंसेंटिव स्कीम्स? सी, स्कॉलरशिप्स कैसा होता है ना कि स्कॉलरशिप्स आपका जो है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए स्कॉलरशिप्स है। और इंसेंटिव स्कीम्स होता है, देखिए मोमा ने जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया अपने फंड को। अगर आप देखिएगा तो 2600 करोड़ उन्होंने डिफाइन किया है आपको स्कॉलरशिप के लिए, और बाकी अमाउंट इंसेंटिव दूसरे दूसरे स्कीम्स के लिए। जैसे मैं कुछ सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, सेट आप IAS या IPS की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इनके पास दूसरे स्कीम्स हैं। वो स्कीम्स में आपको 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है, फीस मिलता है कि आप IAS IPS मेडिकल इंजीनियरिंग, तो वो एक अलग पार्ट होगी इंसेंटिव्स के पार्ट, और उसके लिए लगभग 50% बजट उधर एलोकेटेड है। ये स्कीम्स तो मुझे इस पे तो ज्यादा बात करना था पर कभी और डिस्कस करेंगे। ये फंड एक्चुअली वापस जाता है, 1500 करोड़ 1000 करोड़ वापस जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना बहुत चालाकी से इस पे खेल रही है और हमारे लोग, हमारे इंस्टीट्यूट इस पे जागरूक नहीं है इस पर। शुक्रिया। तो आपको हमेशा स्कीम अगला में ही सवाल, डालना है, इंसेंटिव्स पे नहीं डालना जब स्कॉलरशिप में डाल रहे हैं तो। ठीक, बेहतर। अगला सवाल ये है कि क्या एक स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट की मल्टीपल स्कीम क्लेम कर सकता है? फर्ज करें दिल्ली में एक 9th क्लास के स्टूडेंट है और दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है माइनॉरिटी ट्यूशन फी रिम्बर्समेंट के ताल्लुक से, या और दूसरे स्टेट में, तो उन्होंने वो स्कीम ले ली स्कूल के बिल या रिसीट्स लगा के। क्या ये फिर हम मोमा की भी स्कीम में
वो आ सकता है या नहीं, अगर अमाउंट रीइंबर्सेबल पूरा नहीं हुआ है। मान लीजिए टोटल फीस 1 लाख की है, दिल्ली सरकार ने 48,000 दिए, सिर्फ 52,000 जो है वो अनक्लेमेबल है या उसका नहीं लिया, तो क्या वो अमाउंट क्लेम किया जा सकता है या नहीं? सर आइडियली नहीं, बट आइडियली नहीं कर सकते हैं, बट बच्चे करते हैं और बहुत बच्चे कर रहे हैं। और हम वैसे बच्चों को भी जान रहे हैं जिनका फीस 30,000 रुपीज है और स्कॉलरशिप 1,20,000 के ले चुके हैं। तो ये सब होता है, पर आइडियली गवर्नमेंट कैसा है कि जो मोमा का स्कीम है, अगेन मैंने कहा स्टेट सब्जेक्ट है, और जो दिल्ली गवर्नमेंट दे रहा है वो भी स्टेट सब्जेक्ट है। तो एक स्टेट का आप 2 स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, लेकिन नहीं लेना इज डिफरेंट थिंग और नहीं अप्लाई करना इज डिफरेंट थिंग। आपको दोनों अप्लाई करना है। दोनों अप्लाई इसलिए करना है क्योंकि अगर एक रिजेक्ट हो गया तो दूसरा तो मिले, वरना आपने एक ही रिजेक्ट किया और अगर वो रिजेक्ट हो गया तो फिर तो आपको 0 मिला। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि जो वेबसाइट होता है ना, एक वेबसाइट में अगर 4 स्कीम है तो आप एक ही अप्लाई कीजिएगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मोमा का अलग से वेबसाइट है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का, और दिल्ली गवर्नमेंट का अलग से वेबसाइट है, तो आप दोनों में जा करके आराम से अप्लाई कर सकते हैं और करना भी चाहिए। रिजेक्ट हो सकता है एक, तो अगर दोनों रिजेक्ट हो गया तो आपको कॉर्पोरेट भी अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई आप खूब सारा कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा आपको कोई एक ही। और अगर दोनों मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना रिजेक्ट करने का काम गवर्नमेंट का है। आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगेन दोनों जो रिपीटिंग है वो एक चीज, दोनों लेकिन के बजटरी एलोकेशन डिफरेंट है। स्टेट का बजट अलग है, सेंटर का बजट अलग है स्कॉलरशिप्स के ताल्लुक से। इसी में एक सवाल ये है, कई बार ऐसा देखा गया है कि साहब इस मतलब स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा है, स्कॉलरशिप का सम बन रहा है 50,000 और स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ 20,000 रुपए, तो ये क्या बजट लिंक्ड रहता है या एप्लीकेशन के हिसाब से भी हो मतलब होता है? मान लीजिए फर्ज करें गवर्नमेंट का बजट है 100 का, ठीक है ना, अब एप्लीकेशन आ गई उस पे से 50, है ना, 50 आई, अब 50 के 50 एलिजिबल हैं, लेकिन हर 50 में हर आदमी 5 रुपीज मांग रहा है, तो उस हिसाब से 250 का बजट होना चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट उसमें एलोकेशन जो है वो मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर देती है या फिर कैसे रहता है वो सर? अगर आप उस पर नहीं सर, थोड़ी सी उस केस में रोशनी डाल पाए। एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कोई एक सिटी पकड़ लीजिए मुंबई, तो मुंबई में प्री मैट्रिक के स्कॉलरशिप के सीट्स मोमा में डिफाइंड है कि 5,000 बच्चों को प्री मैट्रिक देना है, 7,000 बच्चों को पोस्ट मैट्रिक देना है और मेरिट कम मीन्स को 3,000 देना है। तो ये लोग सिलेक्शन उसी बेसिस पे करते हैं, अगर 3,000 मेरिट कम मीन्स देना है तो 3,000 को ही देना है वो। पर ज्यादातर शहरों में ना ये लिमिट भी नहीं तो वो अचीव क्या नहीं फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे रहता है वो 3,000? मेरा वही सवाल है कि नहीं 3,000 को हाँ देना है, एप्लीकेशन आ गई हमारे पेज से 6,000, और वो 6,000 एप्लीकेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ठीक है ना, वैलिड है, स्टूडेंट एलिजिबल है, तो उस केस में कैसे एलोकेशन होता है? किसको वो चॉइस होता है? कोई रैंडम ड्रॉ होता है या जिसका एप्लीकेशन पहले आया या लोगों को उसी हिसाब से बढ़ जाता है पैसा? कैसे? गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है कि जिसका एनुअल इनकम सबसे कम होगा उसको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा। अच्छा, ओके तो वो ओके, जो हम तो दिस इनकम इज सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, वहाँ इनकम सर्टिफिकेट में आपका एनुअल इनकम को कम दिखाना होता है, जिसका कम रहेगा उसको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। इसमें वो ओके, तो मेंशन है गवर्नमेंट की वेबसाइट अमाउंट जो है वो एज सच वो डाउन साइज नहीं होता, नहीं। अमाउंट जो है वो 100% जो एलिजिबल क्लेमेबल अमाउंट है वो ही अमाउंट रिलीज किया जाता है। दिस इज व्हाट यू आर बिल्कुल सेइंग। बिल्कुल बिल्कुल सर, शुक्रिया, बिल्कुल सर। शुक्रिया। अच्छा, ये आपने एक चीज और बताई थी बीच में कि एप्लीकेशन के 3 लेवल हैं, पहले इंस्टीट्यूट या स्कूल में सबमिट करा जाता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर मतलब उस तरीके से, तो ये क्या सब एप्लीकेशन का ऐसे ही रहता है या फिर कोई अमाउंट वाइज है? 50,000 का मैं कहीं पे पढ़ रहा था, सुन रहा था आपको किसी जगह पर, तो 50,000 का वो क्या है कि ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे उस चीज को हम लोग डिमार्केट कर सकते हैं? मान लीजिए मैं एक्चुअली एग्जांपल वो मतलब ले रहा हूँ, प्री मैट्रिक के केस में स्टूडेंट है, 8th क्लास में है या 9th क्लास में है, तो वो अगर स्कॉलरशिप अप्लाई करता है तो उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा या स्कूल के थ्रू वो करेगा? सी प्री मैट्रिक तक आपको सारे डॉक्यूमेंट सेट्स बनाने हैं और जाके स्कूल में ही दे देना है, लेकिन जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये सबका सेम रहता है। सेम मीन्स आपको पहले ओके, स्कूल लेवल वेरीफाई करना पड़ेगा, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरीफाई करना पड़ेगा और स्टेट लेवल वेरीफाई करना ही पड़ेगा। ये सबके लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं इसमें।
अगला जो सवाल आपने है बताया क्या? 50,000 बताया आपने ना, वो जी जी। 50,000 रुपीज जिसका स्कॉलरशिप अमाउंट 50,000 से ऊपर है, उसको हाँ। कहा गया है कि डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना है। लेकिन अच्छा। मेरे पास, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया मेरे पास से फोन कॉल आते हैं, तो मेरे पास हर लेवल का फोन कॉल है। अब मेरे मिनिस्ट्री से भी जान पहचान है, तो जब मैं अंदर ऑफिसर से बात करता हूँ तो सब लोग ये सजेस्ट करते हैं कि लोग जो वेरीफाई कर रहे होते हैं ना, उनको जी। भी सही से ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। तो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर दे, ताकि हम कोई चांस ना छोड़े। नहीं तो उसमें डबल करने में कोई रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी तो नहीं नहीं नहीं, रहती? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं सर। अच्छा, जो आपका मैग्नेटिक का मींस वाली स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें कोई एज क्राइटेरिया है? मान लीजिए कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर एज क्राइटेरिया नहीं होता, एलएलबी एलएलएम कोई भी है, वो 50 साल हाँ की उम्र में भी जाके कोई कर सकता है, ठीक है ना? बिल्कुल। अब उस केस में जो इनकम डॉक्यूमेंट है वो स्टूडेंट का ही ये लगेगा। मान ले मैं आज की डेट में एलएलबी कर रहा हूँ फर्ज करें, और मैं उसका स्कॉलरशिप चाहता हूँ, तो पेरेंट्स से पहले तो मैं खुद भी वो कमा रहा हूँ। एक्चुअली सर ना, वहां अगर आप देखिएगा ना, तो वहां पे ये कभी नहीं लिखा हुआ है कि एनुअल पेरेंट्स इनकम, उसमें लिखा हुआ है एनुअल फैमिली इनकम। अच्छा। एनुअल फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम। एनुअल फैमिली इनकम में अगर आपके पेरेंट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली खुद का इनकम दिखाएंगे आप। तो एज ए ओके। फैमिली में उसने बहुत से डिफाइन कर रखा है, जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ ना, एनुअल फैमिली बताया गया है। अगर आप शादीशुदा हो तो फिर पेरेंट्स का बात ही नहीं है, आपके आपकी वाइफ का इनकम। अगर आप दोनों ही नहीं कमा रहे हैं तो जीरो इनकम दिखाइए आप। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपका फैमिली इनकम पर। अच्छा, तो उस और एज का कोई हमारा क्राइटेरिया नहीं है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सर, ये जो कहते हैं। जी। अगला सवाल है, ये जो स्कॉलरशिप्स है मोमा का, इसका टाइमलाइन क्या है? ये किस महीने में या कब आती हैं, कब क्लोज होती हैं? जैसे मैं साइट पे आज देख रहा था नवंबर में क्लोज था, मतलब पिछले साल वाला, तो क्या इसका विंडो रहता है स्टैंडर्ड? वो हमारी एक्चुअली ऑडियंस के सर लिए अगर आप ये बता पाए। स्टार्ट होता है अगस्त में, नॉर्मली एवरी ईयर। इस ओके। साल अगस्त में स्टार्ट हुआ और सितंबर के 30 सितंबर तक क्लोज हो जाता है। बट ड्यू टू पेंडेमिक लास्ट ईयर जो है ना, ये एक बार एक्सटेंड हुआ नवंबर 31, देन दिसंबर 31 एंड देन जनवरी 31। 3 बार एक्सटेंड हुआ है लास्ट ईयर। तो अभी पेंडेमिक ईयर में हम नहीं बता सकते कि कैसा बिहेव करेगा। मतलब बट अगस्त टू नॉर्मली सितंबर इज द स्टैंडर्ड? अगस्त अगस्त सितंबर इज फर्स्ट द अगस्त से स्टैंडर्ड टाइम? लेकर के 31 सितंबर तक 2 महीने गैप होता है। और मैं फिर से एक बार आपको कह रहा हूँ कि फॉर्म आने से पहले पहले डॉक्यूमेंट को पूरा रेडी कर लीजिए अपना। वो बहुत बिल्कुल। लोग क्या करते हैं ना, लगभग 60% लोग इनकम सर्टिफिकेट तब बनाने चलते हैं। तो वो बहुत इशू होता है, उसमें वेरिफिकेशन में इशू होता है, फॉर्म देर होता है, बहुत लोग नहीं भर पाते हैं। तो आपको पहले रेडी कर लेना है ये सब। ठीक। अच्छा, जो ये स्कॉलरशिप है ये हमारे करंट ईयर के लिए मिलती है या प्रीवियस ईयर के लिए? मान ले अगस्त सितंबर 21 में हम अप्लाई वो करेंगे इस साल का, सो इट इज फॉर एकेडमिक ईयर 21-22, या जो 2021 कंप्लीट हो गया उसकी स्कॉलरशिप के लिए हम बात कर रहे हैं? ये जी क्लियरिटी थोड़ी सी ऑडियंस को दे दे, एक सवाल भी है इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। सेट अभी हमने एडमिशन लिया 21-22 के सेशन में। हमने मार्च छोड़ा, अप्रैल में एडमिशन लिया हमने। अप्रैल में करेक्ट। एडमिशन लिया हमने, फी रिसीट पे किया, फी रिसीट दिया। देन मई जून जुलाई अगस्त में आप अप्लाई करेंगे उसी फी रिसीट को, और सितंबर अक्टूबर जनवरी में, दिसंबर टू जनवरी पैसे आपके हाथ में आ जाते हैं। तो ये सब कुछ सेम ईयर में ही होता है, पिछले साल का कुछ भी नहीं। तो फी रिसीट तो कुछ स्पेसिफाइड टाइम की ही मतलब दे पाएंगे ना? 3 मंथ का क्वार्टरली फीस होगा या जैसे उस टाइम में, तो उसी के बेसिस पे ही फिर 10 या 12 मंथ का वो मिलेगा? फी रिसीट जनरली सर ना, अगर आप 6 महीने का भी देते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए किसी का फीस ऐसे 50,000 रुपीज है, तो वो पार्ट पेमेंट कर सकता है। पर जिसका फीस अगर 10,000 रुपये है ना, वो एक बार में ही दे देता है। तो जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग का फीस सेट के 1 लाख है, और आपने जी। अगर 30,000 का भी रिसीट दिखा दिया, तो उसका मैक्सिमम कैप 30,000 का ही है, तो आपको पूरा का पूरा फीस मिल जाएगा। पर आपने अगर 15,000 ही दिखाया फी रिसीट, तो आपको ना मैक्सिमम 15,000 ही मिलेगा। तो बेटर है कि आप हाँ, जो तो ये मैक्सिमम जो अमाउंट का कैप है, आप कम से कम उतना फी रिसीट को पे करके आप रिसीट दे सकते, जमा कर सकते हैं। तो आपकी बात का मतलब ये है, जो पेमेंट फी हो चुका होगा उसी का ही हमें हम्म, स्कॉलरशिप का रीइंबर्समेंट सॉर्ट ऑफ मिलेगा, इज इट?
एग्जैक्टली रिम्बर्समेंट है ये, जी हाँ। और इसलिए मैं हमेशा रिइंबर्समेंट है कहता ना। हूँ, हाँ, जी हाँ, नहीं, मेरे पे जैसे कुछ किसी साहब ने सवाल किया है इसी चीज, मतलब चीज पे लेके, फर्ज स्टूडेंट है, प्राइवेट स्कूल में है, 5-6 हजार रुपए हर महीने की फीस जा रही है। आपने कहा जुलाई अगस्त में फॉर्म आएगा, इसका मतलब यह है कि 3-4 महीने की फीस गई 20-25 हजार रुपए, ठीक है ना। और एनुअल अगर हम बात करेंगे तो उसकी फीस 60-70 हजार रुपए ट्यूशन फीस वगैरह जो है। तो अगस्त तक तो उसके पास सिर्फ 20 हजार का फी का रिसीट होगा। तो उस केस में आपका सजेशन क्या है, पहले पूरे साल की एडवांस में फीस दे दी जाए क्या? देखिए क्या वो आप 20 हजार के बेस पे ही गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है, ये दस जो वो 10 ये महीने का जो या 12 आप महीने का? स्कूल ये जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं ना, इसमें जी। स्कूल में पेरेंट्स को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि जब हम स्कूल में, गवर्नमेंट पैसे बहुत कम देती है, 2,000 रुपये देती है, लेकिन गवर्नमेंट ने साफ साफ कह रखा है RTE, राइट टू एजुकेशन, 9 तक गवर्नमेंट का स्कूल बिल्कुल फ्री है। हम लोग जब प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों को डाल रहे हैं 9 तक, तो बेसिकली हम अपने वो जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर उसको बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। तो मैं ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में भेजिए, वो एक अलग टॉपिक है, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने पुणे में गवर्नमेंट स्कूल को इतना अच्छा किया है, कुछ कुछ स्कूल्स को, कि आज वो प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर दे रहे हैं, वो लोग उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो 9 तक तो मैं सजेस्ट करूंगा गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, वरना आप 60,000 पे कर रहे हैं, 2,000 स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं ना, तो दिस 2,000 इज नथिंग, नथिंग। तो इसमें जी। सवाल लेना ही है, मतलब बेईमानी है ये, कि अगर ठीक अब है। मिल भी गया आपको तो उससे और कुछ नहीं होने का आपका। जी जी, काफी सवाल Q&A सेक्शन में आए हुए हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। तो चलो भाई, मैं आपसे वो चाहूंगा कि आप एक बार ग्लांस करें, आप होस्ट भी हैं, तो आप उसके जो सवाल आपको जवाब देने लायक है, आप क्विकली उसको रन थ्रू कर सकते हैं, या यू वांट मी टू टेक अप दैट? What document required private school to get scholarship for these students? सी एक क्वेश्चन था कि प्राइवेट स्कूल के लिए डॉक्यूमेंट्स अलग है क्या? प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, सबके लिए डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम है। आई एम रिपीटिंग, सबके लिए डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेम है, बस उस स्कूल को NSP में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपका नोडल ऑफिसर कौन है। अगर कोई नहीं है तो इमिडिएटली अपने स्कूल को बोलिए कि मुझे स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, आप एक नोडल ऑफिसर असाइन कीजिए। जब वो नोडल ऑफिसर असाइन कर देंगे, वो नोडल ऑफिसर अपना एक अकाउंट बनाएगा स्कूल के नाम से, और फिर सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। हमारे पास बहुत सारे स्कूल को ना, मतलब इस स्कीम के बारे में 40-50% स्कूल को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। और ये बहुत बड़े बड़े स्कूल, बहुत बड़े कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं पिछले 5 सालों से मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि पुणे में बड़े बड़े कॉलेजेस, जिसका शायद मुंबई तक नाम हो, वो लोग इस स्कॉलरशिप के बारे में नहीं जानते, कभी सुना भी नहीं है, जबकि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप है। इतना अमाउंट और इतने बच्चों को स्कॉलरशिप शायद दुनिया में कोई नहीं देता है। ये इतना बड़ा मोमा स्कॉलरशिप जो है, इतना बड़ा बजट, 1 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप, शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी, पहले इसके लिए हम लोग अवेयरनेस फैलाएं, और एज ए NGO भी ज़रूरी है हम ना स्कूल टू स्कूल जाएं, उनको रजिस्टर्ड करें। और एक बात और इम्पोर्टेंट मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमारे फंड को कट करेगी, और अगर ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट हमारे फंड को बढ़ाएगी। क्योंकि 32 लाख करोड़ का हमारा बजट है, उसमें सिर्फ 5,000 करोड़ अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे खर्च कर रही है, तो ये बेईमानी है। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हम वो 5,200 करोड़ भी ठीक से ले नहीं पा रहे हैं। तो पहले हम इसको ले, अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं, ये स्कॉलरशिप्स और बढ़ेगा, और ऑब्वियसली ये सारा फायदा आपको ही होने वाला है, आपको एजुकेशन को ही होने वाला है। कुछ लोगों का सवाल था इसमें कि क्या इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए भी मोमा का कोई स्कॉलरशिप है इस तरीके का? जी नहीं, ये सिर्फ इंडियंस के लिए है। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप और के लिए मेरे बहुत सारे हैं सर, आप MP में बने रहिए, हमारे नेक्स्ट कई प्रोग्राम में जरूर डिस्कस करूंगा। इंटरनेशनल के लिए आपको यहाँ से सिस्टम जैसा है इंडिया में वैसा नहीं है, वहाँ आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है स्कॉलरशिप के लिए, कि मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मैं इंटेलिजेंट हूँ। ये 3 जी अगर मैं जस्टिफाई कर दिया तो स्कॉलरशिप बहुत है, 4-4 करोड़ के स्कॉलरशिप मिलते हैं इंटरनेशनल में। शायद एक मोमा की छोटी सी स्कीम है जिसमें वो एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह का कुछ देते हैं, वो मेरे ख्याल से वो जी अगर हाँ, चाहेंगे तो ऑनलाइन वो देखा जा आपका सकता है ना। पढ़ो पर दे लेकिन स्कॉलरशिप रीइंबर्समेंट नहीं है।
इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट का मतलब उसमें सब हुआ है वो सब्सिडी 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट हो जाता है आपको, 5 लाख रुपए तक, लेकिन इंटरेस्ट सब्सिडी, राइट? इट इज नॉट इंटरेस्ट अ स्कूल सब्सिडी। मतलब। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो इसमें काफी पर वो भी लोगों ये काफी लोगों इंटरेस्टिंग ने है, काफी इंटरेस्टिंग है वो भी। अगर अच्छा आप किसी, बाहर, जी हाँ जी बोलिए जी, बोलिए जी। नहीं नहीं, कहिए कहिए, आप प्लीज कंप्लीट करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने को और आपका फीस मतलब 1 साल का अगर आप कोर्स में जा रहे हैं 1 ईयर कोर्सेज में, तो 20 लाख से कम का टोटल खर्च होता है और वो 20 लाख इस स्कीम से आ जाता है और 2 साल में 95% बच्चे उसको वापस कर देते हैं। तो एक ठीक विन विन सिचुएशन होता है। जो बच्चे ठीक। पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं बाहर जाकर, वो आराम से पढ़ सकते हैं इस स्कीम में। एक अटेंडी ने सवाल करा है कि यूपी में उनका कोई स्कॉलरशिप ये वो रिजेक्ट हुआ था, इसमें जो उनका डिस्प्ले आ रहा है ये मैसेज में रिजेक्टेड बाय ये डायरेक्टरेट। तो ही जस्ट वांटेड टू नो कि अब क्या किया जा हो सकता है, कैन ही रीअप्लाई, या जो वो रिजेक्ट हो गया तो अब रिजेक्ट ही है, वो ये परमानेंट है मोमा या के, फिर उस ये मोमा से माइनॉरिटी रिलेटेड है या स्कीम है? किसी और से? यूपी में किया था इन लोगों ने, शायद मोमा की नहीं कौन होगी सा, मेरे ख्याल मोमा से। या कोई और? ही ओनली मेंशन्ड यूपी स्कॉलरशिप। यूपी स्कॉलरशिप, ओके फाइन। सी, अगर मोमा ने रिजेक्ट कर दिया है तो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा वापस आ चुका है सबका। जिसको पैसा मिलना था मिल गया है। रिजेक्शन का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो आप उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक प्रॉब्लम ना मैं स्क्रीन पे शेयर करना चाहता हूँ, जबकि मुझे नहीं करना चाहिए। जो भी हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट मीन्स आप हरियाणा कह लीजिए या फिर आप दिल्ली कह लीजिए, यूपी यूपी कह दिल्ली, लीजिए। जी मुझे हर साल लगभग 70% ये शिकायत आता है कि स्कूल जो है वो जानबूझ करके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा है या एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है हिंदी बेल्ट में, कि वो लोग पता नहीं, शायद एक मीडिया का फज है, एक बनाया हुआ है कि मुस्लिम सारे पैसे खा ले रहे हैं, इस वजह से उनको स्कॉलरशिप नहीं देना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हम लोग इस पे काफ़ी पिटिशन भी फाइल किया हमने, काफ़ी स्कूल से कंप्लेन भी किया हमने। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अगर एप्लीकेशन कॉलेज स्कूल पर रिजेक्ट हो रहा है तो आप इमीडिएटली एमपी या फिर हम जैसे टीम से जुड़िए। हम इमीडिएटली स्कूल को बात करेंगे, लगे तो उनको हम डराएंगे, पर आपका काम तुरंत होगा। बट इसके लिए आपको तुरंत अप्लाई करना जी, पड़ेगा, और अगर तुरंत रिजेक्ट कर दिया तो आपको तुरंत डिफॉल्ट करके दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। राइट। और वो जो आपने 4 या 5 बार स्ट्रेस होके जो बात कही, स्ट्रेस दे के बात करी एक्टिविज्म की, तो जी वो हाँ, एक्टिविज्म फैमिली में भी होना चाहिए, स्टूडेंट के लेवल पे भी होना चाहिए और कम्युनिटी में भी होना चाहिए। और 100% जिस हर लेवल तरीके पर। से एएमपी काम कर रही है और ग्राउंड लेवल पे और एनजीओस काम ये कर रही हैं, तो वहां पे उनका रोल बड़ा अहम हो जाता है कि वो किस तरीके से इन सब चीजों में जहां पे रिजेक्शन ज्यादा है उसको कैसे कंटेन करके मिनिमाइज किया जा सके। बहुत हाईलाइट करें। अच्छा है। कुछ लोग, जी जी, कुछ वो लोगों ने सवाल किया था कि इसका ऑडियो मतलब इसकी हम लोग ये रिकॉर्डिंग ये लेक्चर पे कैसे वो ये देख सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के फेसबुक पेज पर हम लोग लाइव हैं। वो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल एएमपी के फेसबुक पेज पे जाके इस पूरे हमारे आज के ये वेबिनार को दोबारा से देख सकते हैं। कोई अगर आपको कोई चीज लगेगी कि मिस कर दिया है या कुछ है, तो आपको दोबारा से आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। और कुछ सवाल ले रहे थे, आपके पास वक्त है जी अरशद भाई? बिल्कुल वी हैव बिल्कुल, टू अभी थ्री मोर मिनट। बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है। तमन्ना पूछ रही है कि सर कैन आई अप्लाई इंस्पायर एंड मोमा स्कॉलरशिप, इफ आई डोंट सो विच वन आई कैन अप्लाई? आई एम नॉट अवेयर अबाउट इंस्पायर, आप बताइए इसमें ओके, इसको। इंस्पायर आपको पता है ये 12th के लिए है, और अगर आप अपने बोर्ड में टॉप 1% पर हैं, अगर हम रिपीटिंग टॉप 1% पे हैं अगर, तो इंस्पायर अप्लाई कीजिए। ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, आपको हर साल 80,000 रुपीज मिलता है, चाहे आपका फीस 3,000 ही क्यों ना हो। दिस इज द बेस्ट पार्ट, कि आपका फीस अगर 1,000 है तब भी आपको 80,000 रुपीज मिलता है इंस्पायर में। और ये अप्लाई करना चाहिए, पर आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, क्योंकि टॉप 1% को ही मिलता है। अगर आप बिहार बोर्ड में टॉप 1% पे हैं तो चांसेस है आपका। अगर आप महाराष्ट्र में या फिर सीबीएसई में टॉप 1% पर हैं तो आपके चांसेस हैं। हाँ, दूसरा सवाल था आपका कि क्या दोनों अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं दोनों। पर अगर दोनों आपको मिल गया, सिलेक्टेड हो गए, तो आपको कोई एक ही आने वाला है, तो आप ऑब्वियसली इंस्पायर ही लीजिएगा, सॉरी एस्पायर ही लीजिएगा, क्योंकि एस्पायर का मोमा कोई कंपैरिजन नहीं है।
कहाँ 80,000 और कहाँ ये 10,000, बहुत फर्क है दोनों में। ठीक है। नवीद साहब सवाल पूछ रहे हैं, फॉर न्यू पीएचडी एडमिशन स्टूडेंट ऑल्सो दीज स्कॉलरशिप्स आर एप्लीकेबल पीएचडी के लिए? जी हाँ, अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आपके लिए बहुत सारे, मौलाना आज़ाद का भी पीएचडी का स्कॉलरशिप है, मोमा का भी पीएचडी का स्कॉलरशिप है, और दोनों में लमसम 27,000 से लेकर के 31,000 पर मंथ मिलता है। बट आपको उसके लिए एक कैच है कि आपको जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा, और ये लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 30% सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है, और मुस्लिम्स में हमारी लड़कियां उतना नहीं पढ़ती है, तो कई बार जितनी लड़कियां अप्लाई करती हैं सबको मिल जाता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। मोहम्मद साहिल साहब सवाल पूछ रहे हैं कि आई एम अप्लाइड फॉर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप प्रीवियस ईयर, माय एप्लीकेशन पास फ्रॉम द 2 लेवल बट कैन नॉट रीच, currently I am in first year, how can I apply the next scholarship? 2 लेवल तक उनका थ्रू हुआ होगा, फाइनल लेवल पे शायद जाके नहीं हो पाया होगा किसी भी रीजन से, तो अभी वो नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं, तो अब कैसे स्कॉलरशिप अप्लाई वो करें? सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, अब जाकर के एक बार आप चेक कीजिए। जब आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपको एक पेज आएगा जिसमें ये बताया कि आपका एप्लीकेशन लेवल रिजेक्टेड है या किस स्टेज पर है। अगर रिजेक्टेड है तो वहाँ पर वो लोग रीज़न देंगे किस रीज़न से रिजेक्टेड है। सबसे पहले आप उसको ठीक कीजिए। हो सकता है बैंक का रीज़न हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपको उसको ठीक करना है। और हाँ, ठीक करने के बाद अगर कोई रीज़न नहीं है तो आप अभी भी उनको मेल डाल सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ, उसने अगर आपको रीज़न, वैलिड रीज़न नहीं दिया है तो। और अगर वो गलत होंगे तो आपको स्कॉलरशिप अभी भी मिलेगा। और अगर वो सही है और आप गलत है, किसी भी रीज़न से आप गलत हो सकते हैं, बैंक आईएफएससी कोड, आपका केवाईसी नहीं हुआ है, तो आप ये सारे मिस्टेक्स को ठीक कीजिए और नेक्स्ट ईयर रीअप्लाई कीजिए, बिल्कुल स्कॉलरशिप मिलेगा आपको। ठीक है। एक सवाल ये आया कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीटेक इन आलिया यूनिवर्सिटी, आई हैड अप्लाइड फॉर एमसीएम स्कॉलरशिप बट ऑल ऑफ स्टूडेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी गॉट ओनली 15,500। ये डाउन साइज अमाउंट शायद इनको रिसीव हुआ होगा, तो उसमें स्टेट कुछ स्टेट बात करना चाह विच स्टेट विच स्टेट he didn't mention that. ओके। State इसमें प्रॉब्लम क्या है? यस यस, मैं आ रहा हूँ इस पॉइंट पर। इस बार क्या हुआ है कि झारखंड के जो एनआईटी है, 3-4 एनआईटी है झारखंड में, वहाँ के मुझे करीब 50 बच्चों का फोन आया इस बार। उन्होंने कहा है कि उनका एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया है कि वो लोग बोले कि हॉस्टलर जो है वो, आप हॉस्टल तो बंद था, जबकि वो लोग हॉस्टलर थे, उन्होंने हॉस्टल फी भी पे किया, इस वजह से उन लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि किसी स्टेट के पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं होता है या नॉन बीजेपी स्टेट है, से बीजेपी ने अपने स्टेट में ज़्यादा फंड दिया है, नॉन बीजेपी स्टेट में कम फंड दिया है, तो उस केस में वो लोग बेचारे, कभी कभी स्टेट का मजबूरी होता है पैसे कम ये करना, तो ये सब 2-3 सालों की बात है, फिर ठीक हो जाएगा ये सब। ठीक। तनवीर साहब सवाल पूछ रहे हैं डोमिसाइल के ताल्लुक से, स्टूडेंट और पेरेंट्स के ताल्लुक से। उनके केस में पेरेंट्स जो हैं वो उनके बिहार से बिलोंग करते हैं और इनकी बर्थ हुई है नोएडा में और आजकल देहरादून में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनके केस में डोमिसाइल जो है वो कैसे अप्लाई होगा? उनको कहाँ का नेटिव कहाँ का माना जाएगा? माना जाएगा। अगर पेरेंट्स के इंजीनियरिंग हिसाब कर से रहे हैं चलेंगे तो जहाँ मुझे, अगर ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 3 मुझे अलग लगता अलग है स्टेट हो गए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनका एज जो है 15+ है, और अगर ये पिछले 15 साल से नोएडा में रह रहे हैं, तो अगर पिछले साल से नोएडा में रह रहे हैं तो अब ये एलिजिबल है नोएडा का डोमिसाइल लेने को। ठीक है। इन केस अगर इनके पास नोएडा का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है अगर, और बिहार का डॉक्यूमेंट है, तो वो बिहार से भी डोमिसाइल बना सकते हैं। किसी भी स्टेट में कम से कम अगर आप 15 साल तक हैं तो आप वहाँ का डोमिसाइल आराम से बना सकते हैं। 15 साल पुराना लाइट बिल लगता है और आपके पेरेंट्स का कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, तो आपके पेरेंट्स का 15 साल पहले का डॉक्यूमेंट जहाँ का भी अवेलेबल है, अगर नोएडा का है तो आप नोएडा दिखा दीजिए, आपका बिहार का है तो बिहार भी डोमिसाइल दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए 15 ईयर्स बिफोर का। ठीक है। ये सवाल तो हमने आंसर कर दिया है, स्कॉलरशिप स्टेट लेवल और मोमा वाली। मोहम्मद अकबर सवाल पूछ रहे हैं क्या काउंसलर से इनकम सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है? आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल, वो तो एसडीएम डीएम या तहसीलदार ही जी मेरे हाँ, ख्याल से बना पाएंगे। तहसीलदार तलाटी यहाँ पर होता है हमारे महाराष्ट्र में, बिहार वगैरह में एसडीओ होता है, एसडीएम होता है,
किसी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी से ही बनाना होता है ये। जी जी जी। तो मौलिक जीवानी पूछ रहे हैं, ड्यू टू यूनिवर्सिटी इज नॉट ओपन, हाउ आई कैन गेट माय बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो ये तो मेरे ख्याल से अब तो सब खुल गई है, ईमेल वगैरह के थ्रू कांटेक्ट करके बनाया जा सकता है। स्टिल पिछले साल बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, तो हमने क्या किया था कि बच्चों को सजेस्ट किया था कि आप एक मेल कीजिए, स्पीड पोस्ट से एक दिन स्कूल पहुंचेगा, वो लोग स्टैंप मारेंगे और अल्टीमेटली आपको स्कूल में ही सबमिट करना होता है, तो वो लोग वही सबमिट ले लेंगे। कर सकते हैं सर। दानिया खान का सवाल है कि पोस्ट मैट्रिक और ये मैट्रिक कम मींस, मेरिट कम मींस लिखना चाह रहा होगा, इन्होंने मैट्रिक लिख दिया, इन दोनों में फर्क क्या है? वैसे आपने एक्सप्लेन किया था एक बार, फिर भी ऑडियंस के लिए आप अगर बता दें क्विकली। मेरिट कम मींस इज फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। इसमें जो मेजर कोर्सेज हैं वो है हमारा बीटेक, हमारा डिप्लोमा, सॉरी डिप्लोमा नहीं, डिप्लोमा को इसने नहीं रखा है, बीटेक है हमारा, लॉ है हमारा, एमसीए और एमबीए, ये बीबीए और बीसीए को इन्होंने पोस्ट मैट्रिक में रखा है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बहुत डिबेटिकल है, लेकिन हमारा गवर्नमेंट ऐसे ही है। अगर फिर भी आपको चाहिए लिस्ट कौन कौन से कोर्स इसमें आते हैं, तो हम आपको लिस्ट शेयर कर सकते हैं हम लोग। बट ध्यान रखिए कि जो प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज हैं वही हमारा मेरिट कम मींस में आता है, और जितने भी नॉर्मल कोर्सेज है, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, बीएड, ये सारे हमारे पोस्ट मैट्रिक में आता है। ठीक। नर्सिंग कोर्स मेमो की उसमें है स्कॉलरशिप में, अगर आप मेडिकल नर्सिंग के सारे कोर्सेज जो है मेरिट कम मींस में ही आता है, 30,000 रुपीज का। जैनब का सवाल है कि डिप्लोमा स्टूडेंट है, बीटेक में अब आ गए हैं, तो इनको नया स्कॉलरशिप अप्लाई करना पड़ेगा या वो रिन्यू होगा? मेरे ख्याल से नया रिन्यू वो करना पड़ेगा। अच्छा, बीटेक से नहीं, रिन्यू करना है, नहीं उनका कोर्स चेंज हो, मतलब हो गया, उसके बावजूद भी रिन्यू होगा या फ्रेश अप्लाई होगा? जी हाँ। पहले डिप्लोमा में थे, अब बीटेक में आ गए। हाँ कोई बात नहीं, आप स्टैंडर्ड 6 से लेकर के आप पूरे जहाँ जब तक पढ़ाई कर रहे हैं आपको रिन्यू ही करवाना होता है, नया एप्लीकेशन नहीं लिखना होता। जब नया एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट होने से रिजेक्शन के चांसेस तो होते ही हैं। गवर्नमेंट जो स्लॉट अलॉट करता है, जैसे गवर्नमेंट ने इस साल 10,000 फ्रेश एप्लीकेशन अलॉट किया, तो वो फ्रेश बच्चे भर सकते थे। आप उसमें एक एप्लीकेशन को खराब करेंगे अगर आप फिर से रिन्यू नया एप्लीकेशन डाला तो हर बार रिन्यू ही करवाना है। आप बस आपको डिप्लोमा में 50% चाहिए, वो आपको दिखाना होगा मैं डिप्लोमा 50% आया था, अब मैं सेकंड ईयर में आ गई हूँ। मोहम्मद हसन का सवाल है कि मेरे फर्स्ट ईयर में बैक आई है एक पेपर में, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे। 50 ऑल क्लियर, बिकॉज एकेडमिक एक्सीलेंस भी थोड़ा वो क्राइटेरिया है इसमें। 50% पास, यस। जी जी जी। I am still in class 12 waiting for my result, then I'll be applying, so what marks am I supposed to submit? 50%? Yes, 50% plus. तमन्ना का एक सवाल है, I have account in UBI which has changed into PNB, so sir can I apply it? मेरे ख्याल से अकाउंट अपडेट करने का वो प्रोविजन वो रहता है, अकाउंट एडिट होने का नहीं रहता है। इसलिए अगर आप अभी आप किसी अच्छे बैंक में अकाउंट खुलवाइए, और अगर आपका वहां से अपडेट होता है, एक्चुअली फॉर्म दो तरह का फॉर्म होता है, सी, एक होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक होता है जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो एडिट नहीं होता है, तो आप एक बार चेक कीजिए, अगर एडिट नहीं हो रहा तो आप इस केस में फिर से नया अप्लाई कर सकते हैं, नया मतलब इसको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप फिर से एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ एडिट नहीं होता है। ये बहुत बड़ा इश्यू है। इस बार जो है ना, कई हजार लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है सिर्फ ये आईएफएससी कोड की वजह से। ओके। इनकम लिमिट भी है कुछ स्कॉलरशिप को लेने के लिए? कमर फहीम साहब का सवाल है। अगर आप 10 तक है तो 1 लाख, 12 तक है तो 2 लाख, 2 लाख, और अगर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कोर्सेज में है तो 2.4 लाख। ये एनुअल इनकम, फैमिली एनुअल, मतलब एनुअल इनकम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। ओके। एंड लोअर द इनकम हाई वुड बी द प्रोबेबिलिटी इन व्हेन देयर आर मोर द एप्लीकेंट, है ना? यस यस, प्रायोरिटी विल बी गिवन। किसी ने सवाल किया है, आई हैड अप्लाइड एनएसपी फॉर्म एज टू सीक स्कॉलरशिप बट इट गॉट रिजेक्टेड स्टेटिंग आई वाज नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट, व्हाट इज द मेरिट लिस्ट अबाउट? मेरिट लिस्ट में नहीं है, जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं। हाँ,
उनका कोटा, उस सिटी का कोटा पूरा हो गया होगा। अगर सब कुछ सही है, सिर्फ नॉट सिलेक्टेड लिख रहा है विदाउट एनी रीजन, तो कोटा पूरा हो गया होगा। या फिर उन्होंने साफ साफ वहां पर लिखा होगा कि आपका जो है स्कॉलरशिप क्यों रिजेक्ट हुआ है। सो वी नीड टू फाइंड दैट। मैंने कहा ना, हमने एक वीडियो बनाया था हमने 11 मिस्टेक्स, जो मैंने पिछले 3 सालों में मैंने लिख कर रखा था बच्चे क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, और उन मिस्टेक्स को हमने फाइंड आउट किया और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे एंड देन एक वीडियो बनाया। तो काफ़ी हेल्पफुल है। आप चाहे तो यूट्यूब में देख सकते हैं, अनाबिया क्लासेस चैनल यूट्यूब में जाकर। अभी मैं आप ही के सवाल पे आ रहा हूँ। मतलब आप ही ने जो ये मतलब डिस्कस करा के कोटा होगा डिस्ट्रिक्ट का, तो आपकी बात से ये सेंस आ रही है कि जो टियर 2 टियर 3 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और वो मतलब ये सिटीज हैं, वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकती है ना। जी हाँ, दिल्ली और exactly. मुंबई के ताल्लुक से मतलब Compare अगर में। जो है ना, हम अगर कंपेयर ये करें तो छोटे शहरों में तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो और जरूरत भी वहां पर है ज्यादा, ये भी हम साथ साथ कहेंगे। तो वी शुड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। इस्माइल साहब का सवाल है कि उन्होंने महाराष्ट्र का ईबीसी स्कॉलरशिप लिया है, तो क्या मोमा की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है वो? जी नहीं, 50% डिस्काउंट वैसे ही मिल गया है आपको, वो एलिजिबल नहीं है आप। ईबीसी बहुत अच्छा ये स्कीम है, और हमें इसको थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट जो बनते हैं ना, इसमें अगर जी आपका जी फीस 5 लाख का है तो भी 50% डिस्काउंट है आपको। तो हमें इस पर भी थोड़ा सा बच्चों को बताना चाहिए जी, इस पर। बिल्कुल अच्छा स्कीम बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। सैफुल्ला साहब का सवाल है कि एमए इस्लामिक स्टडीज के लिए भी स्कॉलरशिप होगा, मेरे ख्याल से होगा पोस्ट ग्रेजुएट में। 100%, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। यास्मीन का सवाल है, आई एम हैविंग अ कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम माय डोमिसाइल स्टेट बट अदर डॉक्यूमेंट आई डू हैव फ्रॉम वेयर आई एम लिविंग। कास्ट सर्टिफिकेट का तो कोई मायने मोमा में है नहीं मेरे ख्याल से, वो तो नहीं, नहीं है ना। तो कास्ट से तो कोई, वो तो सेल्फ डिक्लेरेशन कम्युनिटी का है, तो उससे नहीं होगा। ये डोमिसाइल के ताल्लुक से फिर आपने बता ही दिया है कि अगर 15 साल से है तो फिर वहां का बनवाया जा सकता है। ईबीसी का भी हो गया, ये भी आपने जवाब दे दिया। इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो बनाना पड़ेगा, बगैर इनकम सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा। मेडिकल वालों को कितना मैक्सिमम मिल सकता है, ये सवाल है। सेम 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 30,000। मेरिट का मिल 30,000 इज 30,000 द, सबके लिए 30,000 ही है, मैक्सिमम उससे कैप। ज्यादा नहीं है बट मेडिकल मैक्सिमम। वाले ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाए हैं। अगर ईडब्ल्यू बनाते हैं वो लोग, तो अगर उनका साल का 5 लाख का भी फीस है तो 2.5 लाख रुपए फीस उनका माफ होगा। नहीं, इकोनॉमिकली तो ये वीकर सिर्फ सेक्शन, महाराष्ट्र में है ये वाला ईबीसी वाला, या फिर ऑल ओवर इंडिया का रूल है? ऑल ओवर इंडिया। और फैमिली का एनुअल इनकम 8 लाख लिमिट है इसका। जी जी जी, 8 लाख ये तक बहुत का सस्ती इसमें है। लिमिट है। रिसर्च स्कॉलर को भी मोमा स्कीम अवेलेबल होगी? बिल्कुल बिल्कुल, 6 से लेकर पीएचडी तक सबको मिलता है ये। हम लोगों ने सर्टिफिकेट का भी बहुत सवाल ले लिया, काफी लोगों ने बार बार रिपीट करा है। एजुकेशन स्पेसिफिक स्टेट के लेवल के स्कॉलरशिप के बारे में तो उनका वो लोकल स्टेट का देखना पड़ेगा। शोएब साहब ने वेस्ट बंगाल के बारे में जानना चाह रहे हैं, बट आई थिंक दे नीड टू अप्रोच वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी है, माइनॉरिटी ये कमीशन भी है, लोकली तो वहां से करेंगे। मैं मोमा के ताल्लुक से मैं आपने बता दिया। बंगाल वालों को थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, वेस्ट बंगाल वालों को, कि वो लोग, जबकि मुस्लिम्स की आबादी सबसे ज़्यादा है वहाँ पर वहाँ पर मोमा का स्कॉलरशिप बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। अगर स्क्रीन तो मैं शेयर करता, सबसे ज़्यादा कम लोग अप्लाई करने वाले झारखंड एंड बंगाल एंड उड़ीसा। यहाँ पर लोग अप्लाई करते ही नहीं है मोमा को। ज़्यादातर लोग स्टेट में ही रहते हैं। तो आपके पास स्टेट का भी कोटा और ये भी कोटा है, दोनों अप्लाई करना चाहिए आप लोगों को। वेस्ट बंगाल और झारखंड का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम अमान भी है। अमान शेख का सवाल है कि उनकी बहन, शी हैज नाउ गॉन टू 10th grade this year, she haven't got any 9th grade result, so how can she apply for a scholarship for 10th class, 10th grade स्कूल studies? स्कूल से बात स्कूल, कीजिए, स्कूल देते हैं। हमने कई स्कूल से बात किया और बहुत सारे स्कूल्स ने इस साल दिए हैं मार्कशीट। सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए हमने मांगा था, स्कूल को एप्लीकेशन लिखा था कि सर मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, इसलिए मुझे मार्क्स चाहिए 50% के। स्कूल प्रॉपर रिजल्ट बनाकर देता है, एंड दैट वर्क्स एक्चुअली। ठीक है।
हुसैन अहमद साहब ने सवाल किया है कि उनके बच्चे जो है वो बीटेक कर रहे हैं CIPET चेन्नई से, प्लास्टिक ये टेक्नोलॉजी में, तमिलनाडु में, बट नॉट रिसीव NSP। आई थिंक ये शायद NSP की साइट पे लिस्ट नहीं होगा, तो उनको फिर स्कूल को ही करना पड़ेगा इस ताल्लुक से अप्रोच। स्टूडेंट या पेरेंट्स तो कुछ नहीं कर पाएंगे अगर वो अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं होगा। एक्टिविज्म, फिर यहाँ एक्टिविज्म, जी। नेक्स्ट डे जाइए, पता कीजिए कि हमारा नोडल ऑफिसर कौन है। अगर स्कूल नहीं बता पाएगा तो बोलिए क्यों नहीं है, प्लीज भरिए, मुझे स्कॉलरशिप लेना है। अगर आप नहीं भर नहीं, जब रहे वो हैं NSP टीचर, के लिस्ट पे नहीं है तो वहां पर ऑफिसर भी कैसे होगा अपॉइंट, नोडल नहीं ऑफिसर? नहीं, लिस्ट लिस्ट वैसे ही होता है, आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, और अकाउंट बनाने के अच्छा, बाद आपको ओके कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट किए ओके। आपके, आपका UGC अप्रूव्ड एंड ऑल दिस, सब कुछ वेरीफाइड है, आप सेम डे उसके मेंबर बन जाते हैं। इसके लिए कोई फोन करने की जरूरत या फिर सोर्स की जरूरत नहीं है। ये इतना ही सिंपल है जैसे फेसबुक में अकाउंट खोलना। करेक्ट करेक्ट। सुहेल मकबूल कश्मीर से बात कर रहे हैं। उनका सवाल है कि 2021 में अप्लाई किया था, उनका एप्लीकेशन का स्टेटस है फाइनल वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। सो अभी जानना चाह रहे हैं ये सिलेक्शन प्रोसेस कब खत्म होगा, होगा कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट के बाद भी मेरे ख्याल से एक लेवल और होगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद एक लेवल होता है, जी हाँ, स्टेट लेवल होता है। है ना, तो वो अपना और कश्मीर, यूजर ID लॉगिन में ही करके उसका अपडेट बोले। तो इनका कोई टैट नहीं वो नहीं होता क्या एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का, कि इतने टाइम में अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, डिसीजन वो देना है? नहीं सर, लेकिन नॉर्मली सब कुछ पिछले साल सब कुछ ठीक से हो जा रहा था। ये कोविड के वजह से ना बहुत कुछ अलग हुआ है इस बार। अभी कुछ कुछ बच्चों का अभी स्कॉलरशिप आ रहे हैं, जबकि फरवरी मार्च में ही लगभग लोगों का स्कॉलरशिप आ गया। तो हो सकता है कि सरकार सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास फंड का प्रॉब्लम है, इसलिए धीरे धीरे कहीं कहीं से ला करके वो लोग दे रहे हैं, ये भी हो जी सकता है। जी। क्योंकि लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट ने 2600 फंड ट्रांसफर किया था, इस साल इन्होंने अभी तक सिर्फ 24 करोड़ ही फंड ट्रांसफर किया है। तो इनके पास थोड़ा सा फंड का क्रंच तो है गवर्नमेंट को इस बार, जी जी जी। और ये मैं रीजन है देख रहा लेट था, लेट मैं लेट डेटा देख रहा था कि लास्ट ईयर जो प्री मैट्रिक में 1324 करोड़ का ट्रांसफर किया था 1920 में, और 2021 में दिसंबर तक 9 महीने में सिर्फ 204 करोड़ ही ट्रांसफर करा है। यस तो यस। पूरे बट साल में अभी, उससे लास्ट है ना। जी जी। बट मार्च तक उन्होंने कवर किया है, 80% कवर कर लिया मार्च तक। अच्छा, मार्च तक कवर हो गया, दैट इज गुड न्यूज। वो एटी अपनी परसेंट साइट एटी पर, परसेंट जी जी, इट इज नॉट अपडेटेड ऑन द साइट, तो मैं तो वहां से उनका डिटेल लिया। My nephew born in Bangalore, but brother-in-law domicile is from Bihar. So can my nephew apply from Bangalore? तो 15 साल वाला क्राइटेरिया होगा पेरेंट्स का ना, तभी सेम वो से 50 डोमिसाइल का। क्राइटेरिया, यस। तो बस उसमें हमें वही करना है। If a person belongs to OBC and already got 50% off in fees, is he still eligible? I am studying in BA. अच्छा सवाल है इनका है। OBC के नाते जहां हाँ पर भी पढ़ रहे हैं उनमें मतलब 50% का पहले ही मतलब मिल रहा है डिस्काउंट फीस में, तो ये भी एलिजिबल कर सकते हैं, ये भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं मोमा। यस, अगर ओबीसी स्कीम में मिल रहा है और वो स्कीम अगर मोमा के अंदर नहीं आता है तो कर सकते हैं। बट अगर मोमा के स्कीम के अंदर उनका फीस अगर कॉलेज को जा रहा है तो नहीं कर सकते। बट यहाँ यस आप कर सकते हैं, क्योंकि ओबीसी डिफरेंट स्कीम, टोटली डिफरेंट स्कीम, आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। अच्छा, कर सकते हैं, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में ही कर रहा है और गवर्नमेंट और के थ्रू ही OBC का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये मोमा वाला भी कर सकते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल। कर सकते हैं। मोहम्मद हाफिज साहब का सवाल है, आई एम अ बीटेक एंड MBA and have been doing here since level director in multi-billion organization. We have recently started a small group of 150 people in our community to contribute towards education upliftment. Request you to please give us a structured PPT. चले, we will share it। उन्होंने अच्छा एक वो दिया है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स जामिया में है, उसके लिए कर सकते हैं अगर एडमिशन लेट हो बच्चों का। एडमिशन के विंडो के हिसाब से ही होगा, लेट वेट तो फिर वो देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन वाइज। लेट मतलब कितना लेट? हाँ, जैसे लास्ट ईयर लेट हुआ था तो एप्लीकेशन को डेट बढ़ाया गया था, हाँ जनवरी 31 तक डेट बढ़ा था लास्ट ईयर। तो डिपेंड करता है कितना लेट, लास्ट डेट के बाद अगर एप्लीकेशन लिया है तो नहीं,
लास्ट डेट से अगर एक दिन पहले एप्लीकेशन लिया है, एडमिशन ले लिया है और आपके पास फी रिसीट आ गया, तो आप उस दिन भी अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डे भी, क्योंकि फिर वेरिफिकेशन के लिए 15 डेज का विंडो मिलता है उसके बाद। ओके ओके। सवाल जो है वो ज्यादातर रिपीट हो रहा है। if some student is already graduated in 2020 और एक साल का ड्रॉप कर लिया बीच में, तो क्या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है? अगर नया कोर्स किया आपने बिल्कुल कर सकते हो, बट आपका जो ग्रेजुएशन था उसमें लास्ट ईयर आपका परसेंटेज 50+ होना चाहिए। दैट्स इट, बिल्कुल कर सकते हैं आप 5 साल बाद भी नए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, इसमें कोई इशू नहीं, गैप का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। I think we have almost done with the questions और बड़ा अच्छा, और सॉरी आपका वक्त हम लोगों ने थोड़ा एक्सटेंड ज़्यादा हो मतलब हुआ है, बट वी आर ग्लैड कि जितने भी सवाल थे वी हैव टेकन ऑलमोस्ट 70-80 ये क्वेश्चन क्विकली, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। और मैं इसी अल्लाह ताला हम लोग इस सेशन को अब क्लोज करेंगे, एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर स्पीकर ऑफ द डे मोहम्मद अशरफ साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना ये कीमती टाइम दिया, और AMP would always like to will always would love to have you here again, because जिस किस्म के सवाल आए, जिस किस्म की अटेंडेंस यहाँ पर रही, फेसबुक पर रही, वो इस बात का आसानी है कि लोगों में थोड़ी बहुत AMP के ताल्लुक से ही, AMP के उससे और हमारे पार्टनर्स के साथ साथ लोगों में एक स्कॉलरशिप्स को लेके थोड़ी सी बेदारी पैदा हो रही है, और हम आपकी दोबारा से आपको बुलाएंगे। बहुत कुछ चीजें डिस्कशन के लिए रह गई हैं, आपकी प्रेजेंटेशन PPT भी आज स्टक हुई, उसके लिए भी मैं ऑडियंस से माजरत चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम में मतलब हम लोग डबल उसको वो जरूर वो करेंगे। और इट इज अ टाइम टू क्लोज। इस छोटी सी दुआ के साथ एक छोटी सी दुआ ये करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्दी से मुलाकात करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसना क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, जो हमारा आज का प्रोग्राम हुआ है ये स्कॉलरशिप के ताल्लुक से, हमारे होस्ट मोहम्मद अशरफ साहब ने हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उम्मत के लिए, नेशन के सभी हज़रात के लिए जो चीज़ें बताई हैं, उसमें उनकी इस मेहनत को कबूल फरमा। AMP की जितनी मेहनत जो कौम के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए, एजुकेशन के ताल्लुक से उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जितनी भी मेहनतें चल रही हैं, उन सबको हमें कबूल फरमा। जहाँ गलतियाँ हो रही हैं हमें उसमें इस्लाह फरमा, और हमें सही रास्ता दिखा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद पहुँचा सकें और अपने इस खूबसूरत मुल्क के तमाम वो लोगों की मदद कर सकें अपनी ज़ात से जितना भी हो सके। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। थैंक यू अशरफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। See you again all. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Thank you. Thanks a lot. We'll be closing this session now.